finished. Okay, so can you tell me any doubts regarding any particular topic or any particular subtopic, anything? If you have any doubt, then please tell me. Hello, I'm audible to you all. Hello, Yes, ma'am. hello. So any doubt, anyone from the particular topic, anything, any subtopic, topic, anything you want to discuss again, or you want to share your views, anything. And those are not mention your name, your study center, and in your enrollment number in the chat box. Please mention your details. Okay. কেউ কিছু বলতে চাও যেটা নিয়ে তোমাদের বলার আছে, লাইক অলমোস্ট কিন্তু সিলেবাস আমাদের ফিনিশড, ঠিক আছে? সো এনিথিং ইউ পিপল ওয়ান্টস টু ডিসকাস, যে ম্যাম এই পার্টটা বুঝিনি আরেকবার বলে দিন, এই পার্টটা আরেকবার একটু ডিসকাস করে দিন, বা তোমাদের যদি মনে হয় যে তোমরা পড়তে গিয়ে নতুন কিছু জিনিস ডিসকভার করেছো যেটা অলরেডি ডিসকাস হয়নি, তো ইউ ক্যান রেজ দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট যে ম্যাম প্লিজ ডিসকাস দিস থিংস অ্যাজ ওয়েল। কারোর কিছু নেই? সবারই কি কিছু পড়া হয়নি? এই রে, ওকে ফাইন। Is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Today I like to discuss something about basics part of product related thing, tourism related thing, because these things I think it's help you to write many things when you actually write anything related with travel and tourism. First things you need to know the purpose of visit. I think you all are aware about the characteristics and definition of travel and tourism, right? Characteristics part आप लोग को शायद याद होगा, right? That characteristics part anybody, वो अपने लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है? डोंट रीड आउट दैट कि बुक या ई पे भी दिया हुआ है, डोंट रीड आउट ऑल दिस डेफिनेशंस. I just want to know your point of view, that particular thing in your idea. What is tourism and characteristics of tourism? Anyone? পড়নি কেউ ট্যুরিজম কাকে বলে, ট্যুরিজমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? হ্যালো, হ্যালো, ম্যাম পড়েছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে, হ্যালো। রাইট নাও মনে আসছে না, হুম, রাইট নাও মনে আসছে না। রাইট। যতটুকু আমি আমি তো বুঝেছি, আমার আমি ক্লাসে আমি এরকম যে বলেছিলাম। যতটুকু বুঝেছি, আমি এটুকু বলতে পারি যে ট্যুরিজম ইজ এ something is a third industry in the world which helps in থার্ড the লার্জেস্ট economic ইন্ডাস্ট্রি। sustenance of every country. And by tourism we mean from one বাট coming হোয়াট from ইজ one ট্যুরিজম? destination and হোয়াট moving to ইজ another ইট? destination, and it should be more ফাইন, than বাট 12 হোয়াট to ইজ 48 ইট? hours. 12 to 48 hours? More Are you than sure? 12 hours, 48 hours, more than 48 hours. যতটুকু মনে পড়ছে ফার্স্ট ইয়ারে যা পড়েছিলাম, মানে এইটুকু আমার ভাষা ভাষা আইডিয়া আছে। 24 hours to 365 days. মিনিমাম 24 আওয়ার্স, ম্যাক্সিমাম 365 ডেজ। এটা তো আমি ক্লাসে কতবার বলেছি, আই গেস। And that particular time frame you are not join any sort of earning activity, maybe that earning activity related with part time or short term business, any sort of money earning or money exchange type of activity, it's not entertained during your travel duration. And you have to spend your money for your accommodation, for your transportation, as well as your food. You have to stay away from your residence as well as your workplace.
So those are the criteria, those are the characteristics of tourism. And this way you can always distinguish the difference between travel and tourism, because those are not same. आप कहीं से ऑफिस जा रहे हो, इट्स नोन एज ट्रैवल, जहाँ पे वो टाइम स्पेंड नहीं होता है, जहाँ पे आपका वो इकोनॉमिकल एंगल नहीं होता है, मनी एक्सचेंज एक्टिविटी, दिस काइंड ऑफ characteristics वहाँ पे नहीं होता है. But when we talking about tourism, that time, that money earning activity, that you have to spend your time away from your residence as well as your workplace, then your entire purpose is related with pleasure and leisure purpose. Those characteristics are associated with tourism, जो travel में नहीं होता है. ट्रैवल में भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी दोस्त के घर गए या कोई रिलेटिव के घर गए, वहाँ पे आप स्पेंड किए टाइम, तो ऑब्वियसली आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पे रहोगे, वो लोग तो आपको नहीं बताएगा ना कि आप यहाँ पर पैसा दे के खाओ या ऐसा कुछ करो. So those kind of characteristics actually makes difference between travel and tourism. Those are the different terms. That travel is different thing and tourism is different thing, but some extent it's related with each other, but main characteristics are different. ठीक है. तो जब आप टूरिज्म के बारे में बोल रहे हो, आपको जाना है आपके घर, दैट मीन्स रेसिडेंस, एंड वो आपके जो ऑफिस एरिया है उससे दूर, and you have to spend minimum 24 hours and maximum 365 days over the destination. That means जब ऑफिस जाते हो तो आपको बोला जाता है कि आपको एक दिन पूरा ऑफिस में रहना है, एक ओवरनाइट स्टे के बारे में बताया तो नहीं जाता है ना. सो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवल. ट्रैवल में वो टाइम बाउंड नहीं होता है, दैट मनी अर्निंग ये सब एक्टिविटी के बारे में नहीं होता है. देन एनी शॉर्ट ऑफ पर्पस है वो हो सकता है, लेकिन टूरिज्म का कुछ स्टिपुलेटेड पर्पस है और कुछ ऑलरेडी बिफोर मेंशन ऑलरेडी दैट characteristics होता है. You have to follow those characteristics, that your travel should be, that your tourism purpose should be related with leisure and pleasure purpose. क्योंकि देखिए आप कहीं पे जा रहे हो, वहीं पे आप आपके रहने के लिए, because we actually in the definition we already mentioned that you have to spend your money for your accommodation, transportation as well as your food. अगर आप तो ऑटोमेटिकली आप जब अपना मनी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस लोकल जो इकोनॉमी है, पर्टिकुलर लोकल इकोनॉमी एनरिच हो रहा है, राइट. अगर फिर आप वहीं से जाके कुछ शॉर्ट टर्म बिजनेस या कुछ पार्ट टाइम जॉब कुछ भी कर रहे हो, एनी शॉर्ट ऑफ मनी अर्निंग एक्टिविटी एक्चुअली इन्वॉल्व ओवर देयर, देन आप क्या करोगे, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो मे बी उससे ज्यादा आप लेके चले आओगे. और अगर पूरा के पूरा या ज्यादा भी नहीं लेके आए, कुछ तो लेके आओगे. तो जो मेनली टूरिज्म का जो मेन मोटो है, थ्रू टूरिज्म वी एक्चुअली एनरिच एनी डेस्टिनेशंस लोकल इकोनॉमी. तो अगर किसी डेस्टिनेशन के लोकल इकोनॉमी या लोकल लाइफस्टाइल, लोकल स्टेटस अगर एनरिच हो जाए, तो ऑटोमेटिकली लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल, ऐसे ऐसे करके रोट होता है, एक एक इम्पैक्ट होता है. तो अगर आप कहीं पे भी स्पेंड कर रहे हो, अगर आप उससे से वो अपने मनी अर्निंग एक्टिविटी से आप जितने भी स्पेंड कर रहे हो, उससे सम परसेंट आप इनकम करके लेके चले आए या ज्यादा ही लेके चले आए, तो क्या हो रहा है, देखो जो कैश इनफ्लो हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आउटफ्लो भी हो रहा है. तो आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपको पहले दिमाग में रखना है. फर्स्ट वन इज टाइम फ्रेम, सेकेंड वन इज पर्पस, थर्ड वन इज योर इन्वॉल्वमेंट क्राइटेरिया. किस तरीके से आप इन्वॉल्व हो सकते हो, इन्वॉल्वमेंट क्राइटेरिया, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. नेक्स्ट यू नीड टू नो द पर्पस ऑफ विजिट. हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो उसका कुछ पर्पस होगा. इट्स ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड विद पुश एंड पुल फैक्टर, दैट मींस मोटिवेशनल फैक्टर्स इन टूरिज्म. राइट. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज पुश एंड पुल फैक्टर? ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था. push and pull factor. Push factor related with tourist angle and pull factor related with destination angle. तो push factor में क्या होता है, कौन से फैक्टर्स आपको पुश कर रहे हैं कि ओके नाउ यू नीड टू विजिट एनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. ठीक है, इट्स नोन एज पुश फैक्टर. एंड पुल फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर रिलेटेड विद डेस्टिनेशन, जहाँ पे क्या होता है आपको देखना है कि डेस्टिनेशन में ऐसा क्या पोटेंशियलिटी है, डेस्टिनेशन में अवेलेबल एमिनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है. सपोज माउंटेन एरिया, तो सिर्फ
नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल या पर्टिकुलर लेह लद्दाख जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहीं पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में इंडिया से भी बाहर, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल माउंटेन टूरिज्म या हिल टूरिज्म वहीं पे होता है। तो आप पर्टिकुलर उस डेस्टिनेशन में ही विजिट करने के लिए क्यों जाओगे? So that particular destination must have some sort of infrastructural attraction over there or available amenities over there. अगर आपको वहाँ पे आपका जो एमिनिटीज चाहिए, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पसंद है, और आप जिस टाइप के टूरिस्ट हो, मे बी एलोसेंट्रिक, साइकोसेंट्रिक और बीच सेंट्रिक टाइप के आप टूरिस्ट हो, आप एज पर दैट रिक्वायरमेंट आपको यहीं पे अवेलेबल सर्विस मिल रहा है, तभी तो आप वहीं पे जाओगे। तो इट्स मीन्स पुल फैक्टर, जो पुल फैक्टर इट्स रिलेटेड विद डेस्टिनेशन, जहां से वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मार्केट में बहुत सारे टूरिस्ट है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स अवेलेबल, वर्ड ऑफ माउथ ये चीज अवेलेबल, तो वी ऑल आर अवेयर अबाउट वेरियस डेस्टिनेशन। और हमारे अगर पर्टिकुलर टाइप के टूरिज्म के ऊपर इंटरेस्टेड हो भी, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या पर्टिकुलर एरिया के बारे में कौन से कितने टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है क्या है, ये सब देख लेते हैं। फाइन, जिस पूजा में हमको सी बीच जाना है, तो कितने टाइप के सी बीचेस इंडिया में अवेलेबल है, या अगर मैं हाई प्रोफाइल टूरिस्ट हूँ, तो मैं अगर फॉरेन ट्रैवल अफोर्ड कर सकती हूँ, तो इंडिया के बाहर कितने सारे सी बीचेस अवेलेबल है, कितने टाइप के फीचर्स क्या है अवेलेबल, एम्यूनिटीज क्या है, देन एक्सेसिबिलिटी के जैसे पैटर्न कितने इजी है, ये सब कुछ हम लोग ऑटोमेटिकली सर्च करने लग गए। दैट मींस वी हैव एंटायर डिटेल्स विद अस। So now that particular destination must have this much of potentiality कि वो मार्केट से उस टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच ले, पुल कर ले। Now यहाँ पे आप मेरे यहाँ पे घूमने के लिए, तो this kind of infrastructural status or this kind of amenities they have to provide to the tourist, right? So those are related with push and pull factor. So now you need to know the purpose. Purpose क्या क्या हो सकता है? Purpose first एक हो सकता है, it's related with leisure, holiday and recreation. Mainly हम लोग destination, जब भी हम लोग about बोलते, it's all about tourism definition. That time automatically हम लोग क्या बोलते हैं, that your purpose should be related with leisure. Leisure, it's pleasure related with your holiday and recreation purpose. ठीक है, जहाँ पे आप जाके थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए जाओगे, बहुत आप किस टाइप के हो। अब हर वक्त ये याद रखना, व्हेन यू जस्ट टॉकिंग अबाउट द पर्पस, दैट टाइम यू नीड टू ऑब्वियसली टेक इन क्या कहता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिस्ट, द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों का रिक्रिएशनल पैटर्न होता है। जैसे जो एलोसेंट्रिक टूरिस्ट है, दोज आर नॉवेल्टी सीकर्स, उन लोगों को एक्चुअली कोई रिसोर्ट पे जाके वो नॉर्मली थोड़ा रिलैक्स करना पसंद नहीं होगा, वो फिजिकल एक्टिविटी पर, जो ट्रेकिंग हो या एनी सॉर्ट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी में वो लोग अपना रिक्रिएशन, उन लोगों का ये सब कुछ वो लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यू नीड टू नो दैट साइकोलॉजिकल प्लेजर, दैट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टूरिस्ट। बेस्ड ऑन दैट you can easily actually divide that the purpose. You can find out the purpose. Okay, so first one is leisure, holiday and recreation. जो मेनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरीडे लाइफस्टाइल में जब हम लोग बहुत थक जाते हैं, दैट टाइम वी नीड टू चेंज एंड व्हिच हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर रिलेशनशिप इन डिफरेंट वे, राइट? सो इट्स कॉल्ड एज लेजर पर्पस। इट्स ऑल्सो रिलेटेड विद साइकोलॉजिकल थिंग। जब भी आप घर पे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो या और कुछ काम करते हो, तो हम लोग का जब भी रेगुलर लाइफस्टाइल होता है, जिसमें हम लोग क्या होता है, इतना मोनोटोनस हो जाता है, और जो नॉर्मली हम लोगों का रिलेशन है, तो उस रिलेशन क्या होता है, कहीं ना कहीं पे भी सफर करता है। सो दैट क्वालिटी टाइम, जहाँ पे आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आज क्या खाना पकाना पड़ेगा, ओके फाइन, आज मुझे इतने बजे ट्रेन लेना है या इतने बजे ऑफिस पहुंचना है, दिस काइंड ऑफ ये सब जो है थॉट प्रोसेस, इससे आपको बहुत आप दूर जा रहे हो। जो आपके जो नॉर्मली जो आप नॉर्मल जो लाइफ लीड करते हो, जो बोर्डम है, जो रेगुलर मोनोटोनस लाइफस्टाइल है, उससे आप दूर कहीं पे जा रहे हो फॉर रिलैक्सेशन। इट्स रिलेटेड विथ लेजर, जहाँ पे आप एक्चुअली वो साइकोलॉजिकल मसाज भी होता है, बिकॉज जहाँ पे भी हम लोग एकोमोडेशन के लिए जाते हैं, और वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो एक्चुअली ट्रीट अस लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस।
जो नॉर्मली हम लोग के घर में नहीं मिलता है। तो साइकोलॉजिकल और दैट ईगो मसाज वहाँ पे होता है। तो जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग नॉर्मली करते हैं, हम लोग एज पर डिमांड फॉर आवर दैट साइकोलॉजिकल, नॉट ओनली financial status, and that it's also related with psychological thing. As per our psychological demand, we actually जब भी टूरिंग टाइप में हम लोग इतनी सारे एक्टिविटीज को रिलैक्स रिक्रिएशन देता है, मेंटल रिफ्रेशमेंट हो जाता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सी। यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया, सन, सैंड एंड सी। रिमेंबर 4S, यहाँ पे 3S को मेंशन किया है बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग बेसिकली सनी सीजन में घूमना पसंद करते हैं, रेनी सीजन में ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। पहले जब भी ये टूरिस्ट एक्टिविटी होता था, पहले कैसे होता था कि यूरोपियन मार्केट में जो एक्चुअली ट्रैवल टूरिज्म ये सारे एक्टिविटी पहले स्टार्ट हुए थे, वो लोग क्या करते थे, वीकेंड में सनबाथ लेने के लिए सी बीच चले जाते थे, ठीक है। क्योंकि सी बीच इज ऑल अबाउट रिलैक्सेशन पार्ट, वहीं पे आपको इतना फिजिकल एक्टिविटी तो होता नहीं है, आप सिर्फ वो सी बीच का मजा लेते हैं, ठीक है। तो वो सैंड इट्स रिलेटेड विद सी बीच एंड सी, यू नो, इट्स सी वाटर इज रिलेटेड विद दैट रिलैक्सिंग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, समथिंग लाइक दैट। जब भी आप टेंस होते हो, अगर आप मूविंग वाटर की तरफ देखोगे या फ्लोटिंग वाटर की तरफ देखोगे, आप ऑटोमेटिकली देखोगे दैट स्ट्रेस पार्ट इज ऑटोमेटिकली इट्स रिड्यूस्ड। Okay, next is business market. Business market related with MICE, business market related with any particular event. MICE represents meeting, incentives, conference, exhibition or expositions, right? सो बेसिकली क्या होता है, मीटिंग हम लोगों को पता है व्हाट इज मीटिंग, इंसेंटिव, व्हाट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव ऐसे होते हैं, इंसेंटिव टू बेसिकली आप अच्छा परफॉर्मेंस किया बिजनेस में या अच्छा परफॉर्मेंस किया ऑफिस में, तो आपको आपकी जो सैलरी है इससे ज्यादा जो आपको बेनिफिट दिया जाता है, इट्स नोन एज इंसेंटिव। हर टाइम इंसेंटिव मनी से नहीं होता है, बहुत सारे टाइम पे ऐसे भी होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर करे कि यू कैन स्पेंड योर टाइम विथ योर फैमिली एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू स्पेंड एंटायर मनी behalf of you, because it's your reward, it's kind of incentive. This kind of tool is known as incentive tool. जैसे बहुत सारे टाइप के ऐसे होते हैं कि आप शायद आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के डीलर हो, थ्रू आपके जो आउटलेट है या आपका जो ये है, यहाँ से उन लोगों का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हुआ है, तो क्या होगा, पर्टिकुलर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको मोटिवेट करने के लिए आपको बोला जाएगा कि ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ आप कहीं पे घूम के आइए, मे बी गोवा हो सकता है, मे बी आउट ऑफ योर डोमेस्टिक डेस्टिनेशन हो सकता है, इंटरनेशनल टूर भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर जो आप जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका कंपनी का स्टेटस क्या है, तो आप पूरा आपके बिहाफ पे वो लोग पूरा पेमेंट करेगा, आपके रहने के लिए, आपके खाने के लिए। ऑब्वियसली शॉपिंग आपको करना है अपने अपने पैसे से, लेकिन आपके खाने के लिए, आपके ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन और ये कुछ फूड, ये सब कुछ वो लोग करेंगे। इट्स कॉल्ड इंसेंटिव टू conference, symposium, seminars. Those are, I think, you already aware about it. So those जहाँ पे भी actually more than, it's also related with event industry. जहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट कॉन्फ्रेंस, या कि पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बहुत सारे रिसोर्स पर्संस को लेके आके वही पे डिस्कशन हो रहा है, तो इट्स ऑल्सो हेल्प that particular group to enhance their knowledge, enrich their knowledge about that particular topic. Symposiums is related, it's also related with seminar, it's also related with a particular topic जहाँ पे वो educational thing भी हो रहा है। सिम्पोजियम्स एंड सेमिनार्स जहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसोर्स पर्संस को लेके आके आपको एक एजुकेशनल डिस्कशन होता है, उन लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम, इसमें क्या होता है, एक गुड पीयर रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जीबिशन। एग्जीबिशन इज नॉट ओनली दैट painting या any sort of जो exhibitions होते, it's not like that. Any sort of product launching party is also a type of exhibition. आप पर्टिकुलर किसी अपने जो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी हो, इट्स ऑल्सो रिलेटेड विद एग्जीबिशन, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस को आप एग्जिबिट कर रहे हो, ठीक है। और एग्जीबिशन के लिए और जो भी जितने भी सारे आप ये है ना
uh, award ceremony is also a part of exhibition, क्योंकि जब भी आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दे रहे हो उस टाइम आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट, उसके फीचर्स, ये सबको भी आपको बोलना है. इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एग्जीबिशन ही वहीं पे होता है जहाँ पे एक्चुअली क्या होता है एग्जीबिशन के थ्रू यू एक्चुअली प्रोवाइड some information to the others, those are not belongs to your organization, about your pattern, about your mission and vision, about your product and available services. ठीक है. सो इट्स अ बिजनेस मार्केट थिंग. जब भी आप कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो अबाउट बिजनेस पर्पस, तब भी आप स्पेंड कर रहे हो फॉर योर मनी, फॉर योर एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज योर फूड. और फिर भी कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं. या बहुत सारे टाइप का अगर आप एग्जीबिशन या सेमिनार्स के, इंटरनेशनल एग्जीबिशन या सेमिनार्स का ब्रोशर्स देखोगे तो देखोगे लास्ट डे में एक हाफ वो लोग टूरिंग एक्टिविटी के लिए दे देते हैं. एंड जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए तो यू हैव टू स्पेंड सम मनी ओवर देयर फॉर योर फूड एंड फॉर योर ट्रांसपोर्ट, फॉर योर accommodation as well. ठीक है. इस नेक्स्ट इज एडवेंचर मार्केट, adventure and wilderness tourism. So that means it depends on your psychological demand. किस टाइप के आप, जिसको किस टाइप के आप एडवेंचर पसंद करते हो. लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं, किस टाइप के स्पोर्ट्स आपको पसंद है. बहुत सारे एडवेंचर मार्केट है हमारे यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं. दोस आर एक्चुअली, इफ यू आर एडवेंचर सीकर्स then you can actually go over the destination and you can enjoy what you actually want to do over there. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ मार्केट. वाइल्ड लाइफ मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं टू एक्सप्लोर मेनी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ. जैसे बर्ड वॉचर होते हैं ना, बहुत सारे लोगों का सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इको टूरिज्म, ये सब सस्टेनेबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, दोज एक्चुअली हेल्प अस टू एनरिच आवर नॉलेज. तो आपका इंटरेस्ट है अबाउट बर्ड्स, तो जब भी आप पर्टिकुलर उस वाइल्ड लाइफ एरिया में जाओगे या बर्ड सैंक्चुरीज में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, वहाँ पे अवेलेबल जो स्पीसीज है उस स्पीसीज को देख रहे हो, जो बर्ड्स है उसको बर्ड को आप घंटों तक वॉच कर रहे हो. लेकिन वन थिंग दैट ग्रुप ऑफ टूरिस्ट शुड बी स्मॉल. अगर बिग हो जाए ना तो इट्स डिफिकल्ट काइंड टू हैंडल दैट ग्रुप. और बहुत सारे टाइम का, बहुत ज्यादा लोगों के टाइम साथ अगर आप जाओगे तो वो नॉलेज एक्सचेंज भी प्रॉपर नहीं होगा. तो जब भी आप पर्टिकुलर स्पीसीज को एंजॉय करने के लिए जा रहे हो या पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना, स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना को एंजॉय करने के लिए जा रहे हो तो आपको ये वाइल्ड लाइफ या ये आपका जो वाइल्डरनेस टाइप ऑफ टूरिज्म है, दिस काइंड ऑफ टूरिज्म आपको इंटरेस्ट होता है. ठीक है. जहाँ पे आप जाके वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, आप वहीं पे सफर करोगे. नो दैट सफर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिन में ही करना है. ऐसा भी बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप नाइट सफरिंग्स भी कर सकते हो. इंडियन टूरिज्म में मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ नाइट लाइफ. जो फॉरेनर्स आते हैं दे प्रेफर एक्चुअली नाइट लाइफ, दैट एडवेंचर पार्ट जो इंडिया पे मिसिंग है. इंडिया पे शाम के बाद ऑलमोस्ट मैक्सिमम डेस्टिनेशन में करने के लिए कुछ भी नहीं होता. That's a major problem of Indian tourism, you know. So you can explore wildlife safaris and wildlife sanctuaries and all, anything. National park. Next is voluntary market. What is it? देखिए attention दिया हुआ है. Share your. And it's related with PS1 and it's associated with PS4 as well. तो कुछ भी नहीं पढ़ते हो क्या? না এতগুলো পিডিএফ দিয়েছেন কোনটা পুরো বুঝতে পারছি না. এগুলো তো অলরেডি PS1 এ তোমাদের ক্লাসের সাথে পড়ানো হয়েছে. PS1 এর বই যাদের কাছে আছে তাদের জানা উচিত. বাবা পুশপুল ফ্যাক্টর এগুলো তো একদম আগের জিনিস. তাহলে এগুলো যদি না জানো কি করে রিলেট করবে PS5 এর সাথে? PS4 প্রোডাক্ট বেসিক জিনিস যদি না জানো কোনো আনসারই তো লিখতে পারবে না. সাপোজ তোমাদের কোশ্চেন দেওয়া হলো অ্যাবাউট ওয়াইল্ড লাইফ টুরিজম রিলেটেড, তোমাদের ইজিলি অ্যাড করতে হবে দ্য বেসিক ইন্টারেস্ট, দ্যাট মার্কেট, দ্যাট পারপাস,
what kind of service they want, এগুলো তোমাদের জানতে হবে। তো এগুলো বেসিক্যালি এগুলোই না জানো তাহলে কি করে বলবে? Voluntary markets is totally related with the, voluntary participations in different activities. Like it's help you to enhance that skill development of the particular topic, or any sort of health and hygiene related thing. That it's only related. ম্যাম কেটে কেটে যাচ্ছে আপনার ভয়েসটা, আপনার ভয়েসটা কেটে কেটে যাচ্ছে। Now I'm audible. Hello. Yes, Now ma'am. I'm audible. Yes, ma'am. Hello. Okay. Then Yes, ma'am. voluntary markets is totally related with your skill enhancement, your that it's related with academic development. It's not only academic, it's not related with your college and university related thing. Actually, tourism, it's also full of educational thing. So ऐसे भी बहुत सारे टाइप के मोड ऑफ टूर या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड ऑफ ट्रैवल होता है। हमें क्या होता है, हम लोग बहुत सारे एंगल में हम लोग इन्फॉर्मेशन देता है, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम ऐसे भी बहुत से जगह पे जा सकते हैं, वहीं पे हम लोग पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में जान रहे हैं, पर्टिकुलर हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में जान रहे हैं, और पर्टिकुलर कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे चीजें पे इन्वेंट हो। जैसे हमने पहले भी एक बार आपको बताया था कि राजस्थान में एक डेस्टिनेशन है कोटा बोल के, जहाँ पे एक विलेज है जहाँ पे सब लोग मेनली लेडीज को टीच किया जाता है अबाउट सोलर एनर्जी। तो वो लोग वो घर में ऐसे बहुत सारे लोग एकदम अनपढ़ है, लेकिन वो लोगों को जानते हैं कि एक्चुअली कैसे वो सोलर ये सब लैम्प वगैरह को कैसे बनाया जाता है, और ये हेल्प लेते हैं पर्टिकुलर कॉलेज से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, और उन लोगों को वो लोग ट्रेन करते हैं, वो लोग कैसे बनाते हैं। ये पूरा एक जर्नी होता है, पूरा एक जर्नी होता है। तो वो ये सब थोड़ा थोड़ा स्टडी आपको करना, तो आप अगर जहाँ पे अगर लेके जाओगे बहुत सारे लोगों को, वहाँ पे भी एक आप वॉक करवा सकते हो उस विलेज में, जहाँ पे लोग एक्चुअली इलिटरेट है लेकिन काम कर रहे हैं, जो भी है वो एक्चुअली वो लोग एफिशिएंट इंजीनियर जैसे काम कर रहे हैं। देखो वो ऑटोमेटिकली क्या टूरिज्म से भी वो लोगों का जो एक मनी अर्निंग एक्टिविटी हो रहा है, और वो जो वो लोग इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं जहाँ पे वो लोग सोलर लैम्प बना के सेल करते हैं, वहीं से भी उन लोगों का इनकम होता है। तो यू नीड टू नो दैट थिंग, जहाँ पे वॉलंटरी मार्केट इज टोटली रिलेटेड विद द वॉलंटियर एक्टिविटीज, रिलेटेड विद योर social activities, related with your educational related activity and all. Okay, next is student market. Student market means what? Student market is because tourism is a tool of education. So देखोगे बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं फॉर एक क्या बोलते हैं स्टडी टूर, या बहुत वन डे एक्सकर्शन, स्टडी टूर और एक्सकर्शन, स्टडी टूर एंड एक्सकर्शन दोस आर डिफरेंट थिंग। एक्सकर्शन इज रिलेटेड विद वन डे ट्रैवल, आप जा रहे हो एक दिन आप स्पेंड करके विद इन रात होने से पहले आप घर आ रहे हो। That means that 24 hours you don't need to maintain over that particular characteristics over there. But जब भी आप study tour बारे में बोलो, that time you have to spend more than 24 hours over the destination. For example, agricultural tourism, जहाँ पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, डेयरी फार्म्स, फिशरी साइंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है। वहीं पे वो लोग जाके क्या होता है, तो जो फार्मर्स के साथ बात करते हैं, जो भी एक्चुअल काम करते हैं वहीं पे लोग बात करते हैं, दैट एजुकेशनल क्रॉस सेक्शन वहीं पे होता है। इट्स नोन एज स्टूडेंट मार्केट। और ऐसे भी बहुत सारी जगह पे होता है कि स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट्स वीजा लेके। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्टूडेंट मार्केट। बहुत सारे लोग फॉरेन पे ट्रैवल करते हैं ना स्टूडेंट्स वीजा लेके। ठीक है, नेक्स्ट इको टूरिज्म। इको टूरिज्म ऑल्सो रिलेटेड टू टाइम पे स्टूडेंट लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं और that to actually explore that greenery, explore that landscape and all, जहाँ पे mainly आपको देखना है कि वहाँ पे we actually conserve that resources, preserve that resources for future use. That means that eco-tourism, responsible and sustainable tourism, it's related with each other and it's represents eco-friendly type of tourism, जहाँ पे आप लोग नेचर को हार्म नहीं कर रहे हो, किस तरीके से आप एक्टिविटी करोगे, इस टाइप ऑफ आपके बहुत से ट्रेनिंग सेशन भी छोटा छोटा करके। ट्रेनिंग मतलब ऐसे नहीं कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग,
जब भी आपके गाइड आपके साथ उनका एक्सपीरियंस है, आपको डूज एंड डोंट्स शेयर करेगा, तो ऑटोमेटिकली दैट आप खुद जान जाएंगे कि आपको करना है कि आपको नहीं करना. Next is nature tourism market. Nature tourism market is all about traveling the natural area. जहाँ पे आप जा रहे हो also related with eco-friendly practices और eco-tourism related भी जहाँ पे जा रहे हो, क्योंकि इको टूरिज्म रिलेटेड बहुत सारे टाइप ऑफ टूरिज्म होते हैं, लाइक countryside tourism, green tourism, wine tourism, tea tourism, Ayurvedic tourism. Okay, those are actually related with nature-based tourism. जहाँ पे आप लोग actually nature को आप enjoy कर रहे हो. Maybe हो सकता है, और भी आपको उसको कैसे करना है, तो वहाँ पे करना है, इको फ्रेंडली टाइप से आपको करना है. ठीक है, जो भी इको फ्रेंडली टाइप না জল আনতে জল নেই, জলে বেরিয়ে গেছিল, আনতে হবে, নাহলে ঢালা যাবে না. Okay, it's about eco-friendly activities and that nature-based destination पे आप जा रहे हो घूमने के लिए. It's known as nature tourism market. Then rural tourism market. What is rural tourism market? Rural tourism market, it's also a pattern of niche tourism and it's also related with eco-tourism. It's a part of eco-tourism. रूरल टूरिज्म में क्या होता है, हम लोग जो अर्बन लाइफ या सेमी अर्बन लाइफ स्टाइल में लोग ना वो एकदम पूरा स्टक हो जाता है. दैट टाइम वी नीड टू रिफ्रेश आवर मेंटल कंडीशन, रिफ्रेश आवर लाइफ स्टाइल, राइट. तो दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाते हैं, विलेजर्स के साथ ही रहते हैं, उन लोगों के साथ ही खाना खाते हैं, उन लोगों की लाइफ स्टाइल को एक्चुअली एंजॉय करते हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, कुछ मार्केट जैसे राजस्थान टूरिज्म के एक मार्केट है जहाँ पे वो क्या क्या जब बाबा हम लोग क्लास की छियो, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली रूरल साइड पर्टिकुलर विलेज में रहते हैं, एकोमोडेशन के लिए कोई 5 स्टार होटल विलेजर्स के घर पे ही रहते हैं, विलेजर्स में हाइजीन मेंटेन करके खाना पकाते हैं, होम स्टे जिसको बोलते हैं. ठीक है, वैसे ही वो लोग करते हैं, वो लोग स्पेंड करते हैं टाइम उन लोगों के साथ, उन लोग से खाना खाते हैं, एक्चुअली एक्चुअल ऑथेंटिक खाने को एक्सचेंज करते, एक्सप्लोर करते हैं. उन लोग जो जबकि वो लोग खाना खा रहे हैं, स्पेंड देयर मनी फॉर, वो लोग अगर जिस टाइप के कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो लोग खुद उस कॉस्ट्यूम को स्टिच करते हैं. अगर आप अपने देखोगे वहाँ पे राजस्थानी पीपल बैठ के उन लोगों का एथनिक स्टिच करते हैं, वो भी उन लोग वहाँ पे स्टिच कर रहे हैं या ज्वेलरी वो लोग बना रहे हैं, तो उसको लोग क्या करें, ऑटोमेटिकली टूरिस्ट को से उन लोगों को इनकम होता है. So rural tourism through various way, you directly and indirectly you can earn money through tourism. होम स्टे से आप पैसा ले सकते हो, फूड प्रोवाइड से आप पैसा ले सकते हो, आप लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो उससे आप पैसा ले हो, आप जो नॉर्मल ऑथेंटिक जो आपका ये है कॉस्ट्यूम है जो भी है वो सब आप लोग वहीं पे सेल कर सकते हो. तो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग भी ऑल्सो आप वहाँ पे आप अर्न कर सकते हो. अर्बन टूरिज्म क्या है? अर्बन टूरिज्म हम लोग ऑब्वियसली वी एक्चुअली लाइक टू एंजॉय दैट रूरल एरिया दैट थिंग, बट बहुत सारे लोगों का ऐसा है रूरल एरिया भी चाहिए लेकिन अर्बन साइड का जैसे या सेमी अर्बन साइड को लोगों के जितने भी सारे फैसिलिटीज होते हैं वो भी चाहिए. एक्चुअली विदाउट एसी वो लोग नहीं रह सकते, बेसिक वो लोग एक्चुअली रेगुलरली रहते हैं, उसके अलावा वो लोग नहीं रह सकते. सो दिस काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे वो लोग चाहते हैं लेकिन ये चीज भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे वो लोग A1 सिटीज जो भी है वहीं पे आप विजिट करते हैं. और बहुत सारे ऐसे भी रिसोर्ट होते हैं जो ऐसी जगह पे बनाया जाता है जो जहाँ से आप अर्बन और अर्बन एरिया में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो एमिनिटीज वहाँ पे अवेलेबल है, और रूरल एरिया के भी जो भी सारे फीचर्स हैं उसको भी आप कुछ घंटों की ड्राइव पे आप वो भी एंजॉय कर सकते हो. इट्स नॉन एज अर्बन एंड सेमी टूरिज्म. ठीक है, बिकॉज यू नीड टू सैटिस्फाई देयर साइकोलॉजिकल नीड्स ऐसे कि नहीं मुझे
बाबा, ओ बाबा, क्लास कॉलेज को हेलो। तो एक्चुअली क्या होगा वहीं पे, तो जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उन लोग कहीं पे दूर है, लेकिन वो बता इसी के अलावा रह भी नहीं सकते, तो वो लोग क्या करेंगे कि नहीं मुझे यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रहना है, मुझे जाना है, इस साइड पे लगता स्टार्ट हो जाता है। सो यू नीड टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। हेल्थ टूरिज्म मार्केट, हेल्थ मार्केट एक है, तो हेल्थ अनदर वन इज मेडिकल। हेल्थ क्या है कि नॉर्मली हम लोग जाते हैं फॉर चेंज वेदर, एनवायरमेंटल थिंग, जहाँ पे हम लोग जाते हैं जस्ट फॉर वेदर चेंज के लिए, हम लोग ये स्ट्रेसफुल लाइफ है विद एक्चुअली एक्सप्लोर एंड अनदर डेस्टिनेशन एज वेल, जो एक चेंज भी हो जाएगा इनसे दूर। सो फॉर दैट अगेन यू नीड टू स्पेंड योर मनी फॉर योर accommodation, transport as well as food, and another thing मैम it's also related with medical tourism. I think you all guess. না Hello, ম্যাম, এখন শোনা যাচ্ছে, আগে ছিল hello. কেটে যাচ্ছিল। হ্যালো। এখন শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কি বলছি, see, it's all about that health and medical type of thing, जहाँ पे आप normally visit कर रहे हो fully health purpose। मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है, मेडिकल टूरिज्म में आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को विजिट कर रहे हो फॉर योर ट्रीटमेंट, ठीक है, जहाँ पे आप जा रहे हो ट्रीटमेंट करने के लिए as per your monetary condition। आपको ऐसे ही मैंने ऐसे भी बताया था कि as per टाइम्स के जो न्यूज है 7 स्टार कैटेगरी अभी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, और वो टूरिज्म से रिलेटेड करके ही किया जाता है, ठीक है। सो हेल्थ और एक चीज, इंडिया इज अ वेरी फेमस फॉर देयर वेलनेस टूरिज्म, क्योंकि मेडिटेशन, tourism, yoga, those things are actually available in India. It's actually assets of India. तो क्या होता है, हम लोग दिस काइंड टाइप ऑफ टूरिज्म आल्सो रिलेटेड विद हेल्थ टूरिज्म, ठीक है, जहाँ पे आप स्पा टूरिज्म एंजॉय कर रहे हो, जहाँ पे आप योगा एंजॉय कर रहे हो, जहाँ पे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंजॉय कर रहे हो, directly to your health related with, okay, so health tourism market, so this type of benefit, type of tourism are based on that you can easily characterize two types of tourism. First one is explorers. So who are the explorers? Mainly allocentric tourist explorers. They actually like to visit new destinations जहाँ पे लेस क्राउड होता है, न्यू दैट बिकॉज दे आर नॉवेल्टी सीकर्स। उन लोगों के पास ना ये नॉर्मली ऐसे नहीं होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए कि जितने भी कम्फर्ट्स मैं नॉर्मली रेगुलर लाइफ में मुझे मिलता है वो सारे सर्विस, वो सारे कम्फर्ट्स ही चाहिए, ये सब उन लोगों के नहीं होता है। दे एक्चुअली लाइक टू एक्सप्लोर न्यू थिंग, न्यू डेस्टिनेशन, those known as explorers. Another and that explorer, it's really, अगर आप शायद पढ़े होंगे that destination life cycle, the first point is exploration. Exploration means जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप you need to find out the potentiality of that particular that spot, and जहाँ पे आप जा रहे हो, visit कर रहे हो, then you can through any sort of government help or any sort of organizational help, you actually promote that destination as a tourism, promote that spot as a tourism destination. That first, जहाँ पे उस डेस्टिनेशन के बारे में कोई नहीं जानता है, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है, आप कहीं से पढ़े हो या कहीं पे जाके आप वहीं पे जब पर्टिकुलर स्पॉट पे आप घूमने के लिए गए हो, एक जहाँ पे कोई नॉर्मल टूरिज्म टाइप ऑफ कुछ वहाँ पे नहीं है, तो एक्सप्लोर कर रहे हो, it's known as exploration। जो डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट काम, जहाँ पे आप सेल वॉल्यूम देखोगे एकदम डाउन है, सेल कार्प एकदम डाउन, क्योंकि किसी लोगों को पता नहीं है अबाउट द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, और उस डेस्टिनेशन के और टाइम फ्रेम में भी देखोगे दैट इज अ फास्ट पॉइंट जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो। If I visit a particular spot at that much of potentiality, then we need to actually develop proper infrastructure. We need to promote that destination. We need to provide information about that destination.
दैट मीन्स यू नीड टू एक्सेस देयर पोटेंशियलिटी, कि आपको एक्सेस करना नहीं इस डेस्टिनेशन पर, हाँ ये तो दम है इससे, तो इस स्पॉट को तो हम लोग टूरिज्म डेस्टिनेशन बना के प्रमोट कर ही सकते हैं। दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल। और देखो एक्सप्लोरर्स जो है एलोसेंट्रिक टूरिस्ट, वो लोग मेनली इस काम को करते हैं। जिन लोगों का वो नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग होम स्टे पे रह सकते हैं, वो लोग टेंट पे भी कहीं पे रह सकते हैं, कैसे भी हो, वो एक्चुअली नोवेल्टी सीकर्स जहाँ पे वो लोग जाके एंजॉय कर रहे हैं पर्टिकुलर स्पॉट को, ठीक है। एंड वो लोग एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ उसको प्रमोट करेंगे। अगर नॉर्मली गवर्नमेंट भी देखेगा वहीं पे बहुत सारे लोग नॉर्मली आ रहे हैं, वहाँ पे होम स्टेज हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट को, पर्टिकुलर स्पॉट को टूरिज्म डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करके उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट, गवर्नमेंट का भी हेल्प वहाँ पे आपको मिलेगा। Next is mass tourism market. Mass tourism market is totally related with साइकोसेंट्रिक टूरिस्ट, जहाँ पे मास पे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। क्योंकि एक चीज आप याद रखना, एक्सप्लोरर्स जो है एक जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो नए डेस्टिनेशन को, दैट ग्रुप साइज बहुत ही कम होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे जाते हैं, मास नहीं होता है। सो मास टूरिज्म मार्केट जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं, and those people are related with psychocentric tourist, जहाँ पे वो लोग प्रेफर करते हैं कि नॉर्मली जैसे वो नॉर्मल लाइफ जो आपको नॉर्मल लाइफ स्टाइल पे है, वो सारे एबिलिटीज आप उन लोगों को मिलेगा। दैट सेफ्टी सिक्योरिटी पार्ट उन लोग एक्चुअली नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं हम वही जाएंगे, दैट डेस्टिनेशन आर वेल डेवलप्ड एंड दैट नॉर्मल कुछ न्यू चीज करने के लिए उन लोगों का कुछ ऐसा कुछ होता नहीं। इट्स ऑल अबाउट मास टूरिज्म मार्केट, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली लोग विजिट करते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ विजिट करते हैं, कुछ नए एक्टिविटी करने की या नए टाइप ऑफ थिंग को एक्सप्लोर करने की कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इट्स कॉल्ड मास टूरिज्म मार्केट, जहाँ पे दैट ग्रुप द टूरिस्ट ग्रुप साइज इज ह्यूज, बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। Next is niche market. What is niche market? Niche related with orbit. It's related with psychocentric, as well as it's a combination of psychocentric and allocentric. It's called mid-centric tourism. Niche tourism basically niche जाते हैं जहाँ पे जो mid-centric tourist जाते हैं, जहाँ पे हाई रिस्क भी वो लोग एंजॉय करते हैं, और जहाँ पे नॉर्मल जो है वो भी सारे बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जो एनवायरमेंटली सेंसिटिव हो, लेकिन वहीं पे आप न्यू कुछ करने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो रिस्क है, रिस्क लेवल लेस हो या मॉडरेट हो। तो नीश टूरिज्म मार्केट इज रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ पे एक्चुअली मिड सेंट्रिक टूरिस्ट लोग बेसिकली जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्रुप साइज भी ह्यूज नहीं होता है, एज पर द डिमांड और एज पर द डेस्टिनेशन फीचर्स ग्रुप साइज होते हैं, एंड दैट इस टाइप के एक्टिविटीज वहाँ पे अवेलेबल है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ठीक है। दैट नीश टूरिज्म एग्जांपल्स, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट नीश टूरिज्म एग्जांपल्स, राइट। नेक्स्ट इज टूरिस्ट बिहेवियर। टूरिस्ट बिहेवियर को हम लोग कैसे जब भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट उनको ऑफर करते हैं, तो वी नीड टू नो दैट टूरिस्ट बिहेवियर। तो आप किस टूरिस्ट को किस टाइप के टूरिस्ट को आप किस टाइप के पैकेज ऑफर करोगे। देखिए ड्यूरिंग पैंडेमिक अगर आप जितने भी सारे वेस्ट बंगाल बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से जितने भी सारे वेबनार्स में है, वहीं पे आप लोग नॉर्मली देखोगे पूरा प्रोडक्ट लाइन चेंज हो, दैट मीन्स टूरिस्ट के बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज टूरिस्ट बिहेवियर? तो हम लोग प्रोडक्ट फ्रेम कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन डिजाइन कर रहे हैं, तो एट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टूरिस्ट बिहेवियर। So tourist behavior is related with their societal factor. Tourist behavior is related with their economical factor. Tourist behavior is related with their thought process, their preferences, their expectations and all. ठीक है, जो हम लोग का expectations and all, ठीक है।
सो टूरिस्ट बिहेवियर क्या है कि वो लोग किस टाइप के प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, क्यों खरीदना चाहते हैं, अगर उन लोगों को सेटिस्फाई करना है तो किस टाइप ऑफ चीज को हम लोगों को प्रोडक्ट के फीचर्स में डालना है, अगर रिपीट परचेज के लिए हम लोग सोचते हैं तो किस टाइप के हम लोगों को अप्रोच करना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन हो तो भी हमको किस टाइप से करना है, तो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टूरिस्ट बिहेवियर। तो बिहेवियर एक्चुअली किस चीज का हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे हम लोगों का सोसाइटी, जैसे हम लोग सोसाइटी किस सोसाइटी के बिलोंग करते हैं, सोसाइटी रिप्रेजेंट योर सोसाइटल फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर, जहाँ पे हम लोग छोटे से बड़े होते हैं। और एक चीज क्या होता है, जब भी आप इकोनॉमिकली किस स्टेटस पे आप हो, इट्स ऑल्सो हेल्प यू टू डेवलप योर साइकोलॉजिकल एंड योर बिहेवियरल पैटर्न। ठीक है, जैसा ऐसे कि बहुत सा टाइप पे हम लोगों को छोटे, जब लोग हम छोटे रहते हैं हम लोगों को बोला जाता है सबको हेल्प करो, या तो वो फाइनेंशियली किसी को जज करके ऐसा मत करो, हम लोग को छोटी उम्र से सिखाया जाता है। लेकिन जब भी हम लोग अर्न करने लगते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो उन लोगों का थॉट प्रोसेस भी हम लोगों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। तो हम लोगों के जो एक्चुअली बिहेवियर है, जो पैटर्न है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। ठीक है, सो टूरिज्म में भी ऐसे होता है, बिकॉज टूरिस्ट जो है दोज आर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग। जब भी ये लोग परचेस करते हैं, जैसे आप किसी भी चीज को परचेस कर रहे हो, तो आप कभी कभी होता है कि नहीं मुझे सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए घूमना है, बहुत से टाइम पे ऐसा भी होता है नहीं मुझे घूमना है लेकिन आई नीड टू मेंटेन माय स्टेटस। तो आपको ये जान लेना है कि एक्चुअली जिसको आप ये आपका जो सर्विस या आपका जो पैकेज आप सेल कर रहे हो, उसका बिहेवियर कैसे है, उसको जज करने के लिए यू नीड टू एक्चुअली फ्रिक्वेंटली टॉक टू देम कि क्या है, उन लोगों के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और एक चीज क्या बहुत सारे टाइम पे ऐसे होते हैं कि इट्स ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव थिंग। ठीक है कि आप किस आपके पैकेज का क्या कॉस्ट है, जो टूरिस्ट है उन लोग किस पर्टिकुलर, जैसे any sort of niche tourism or any sort of environmentally related tourism are high cost package। ठीक है, बट अगर आप नॉर्मली एडवेंचर टूरिज्म देखोगे तो देखोगे उतना हाई कॉस्ट नहीं होता है। वाई? बिकॉज टारगेट ग्रुप आर मेनली यंग, यंग मतलब मेनली 18 से स्टार्ट होता है, 18 टू 30 35। लेकिन जो लोग 18 से है वो लोग एक्चुअली उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो इतना हाई कॉस्ट नहीं होता है। अगर सेम चीज अगर आप वाइल्डरनेस टूरिज्म करके सेम करोगे, adventure sports but related with some sort of luxurious thing and based on greenery area, जिसको आप बोल रहे हो environmental sensitive wilderness tourism, तब देखो वो पैकेज हाई कॉस्ट। दैट मीन्स किस लोग को आप अप्रोच कर रहे हो उस पर्टिकुलर पैकेज को, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वर्ड ऑफ माउथ आपकी प्रमोशन हो या आप ऐसे सर्विस प्रोवाइड करो जो पर्टिकुलर जो जिस ग्रुप को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो लोग सेटिस्फाई हो, तो वो पूरा प्रोडक्ट डिजाइन ये सब कुछ करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। सो बिहेवियर इज ओनली how do you understand their behavior? Only you can study their societal structure, their economical condition, their psychological development, their mentality। ठीक है, सो फर्स्ट वन सी the sample sequence model of purchase. The first is think and cognitive. That means buying optional with logical. वो लोग logically सोचते हैं कि नहीं ये वो क्या ठीक है हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ओके फाइन, ये सब तक नेगोशिएशन यहीं पे होता है। जब भी आप कुछ सोच रहे हैं वो लोग तब भी आपके साथ वो नेगोशिएट करेंगे। नेक्स्ट इज फील। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल। दैट मीन्स जब आप लोग घूम रहे हो आपका कुछ फील हो रहा है पोस्ट परचेज आपका, जब भी आप यहाँ पे आपका वो सेटिस्फेक्शन हो गया पैकेज सेल हो जाए तो नहीं वो सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा वो लोग घूमने जाएंगे, दैट टाइम वो लोग एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट मेंटल एक्सपीरियंस हो रहा है उन लोगों का एज वेल एज फिजिकल एक्सपीरियंस भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज बिहेव। The purchase to
रिलीव द मेंटल एक्सपीरियंस। तो जब भी आप ये पे उन लोगों के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग एक 9 पीस में एक पीस है फिजिकल एविडेंस, पता है, जहाँ पे आप एक्चुअली मेंटल ट्रैवल कर रहे हो थ्रू दैट वीडियो, एनी शॉर्ट ऑफ ऑडियो क्लिपिंग्स एंड ऑल। क्या होता है, जैसे हम अभी तो सर्विस मार्केटिंग का पैटर्न पूरा बदल गया है। नॉर्मली क्या होता है, वर्चुअल ट्रैवल भी वो लोग करवाते हैं, और भी बहुत सारे लोग जब भी उन लोगों के साथ जाते हैं तो वो लोग उसका वीडियो क्लिपिंग लेके रखते हैं, और उन लोगों के साथ नेगोशिएशन, जब भी वो नेगोशिएशन पॉजिटिव साइड्स पे जाए तो वो शो करते हैं। that is a mental and physical that particular mental and physical journey as well, जहाँ पे वो लोग कुछ फील कर रहे हो, नहीं ये पर्टिकुलर एरिया बहुत अच्छा है, या ये सर्विस प्रोवाइडर्स दोज आर एक्चुअली गुड, ये सब कुछ होता है। देन वो लोग एक्चुअली अगर सेटिस्फाई हो तो देन दे एक्चुअली रिएक्ट और बिहेव, नहीं ओके फाइन वी आर सेटिस्फाइड विथ योर सर्विस और वी आर सेटिस्फाइड विथ ये प्री परचेस एंड पोस्ट परचेस भी होता है, क्योंकि रिपीट परचेस के बारे में भी हम लोग सोचते हैं। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे ना कि मेरे साइड से जो भी पैकेज खरीद रहा है वो नेक्स्ट टाइम भी मुझसे ही पैकेज खरीदे। ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे ना कि वो लोग मेरे कंपटीटर्स से पैकेज खरीदे। तो प्री परचेस एंड पोस्ट परचेस आपको ये सारी चीज को आपको देखना है। That's thinking. Thinking is all about that negotiation part. ठीक है, then that virtual journey or actual journey or through that physical evidence type of journey जो हो रहा है सिर्फ आप फील ले रहे हो। Next is all about your actual behavior during purchase or maybe repeat purchase के लिए, ठीक है। See, purchase sequence. So behave, feel, think. Another one is feel, behave, think. It's a sequence. तो फर्स्ट क्या है, बिहेव। थ्रू बिहेव कुछ फील हो रहा है वहीं पे, तो बेस्ड ऑन दैट फीलिंग्स दे एक्चुअली ट्राई टू थिंक, मे बी रीथिंक। अनदर वन इज फील, जब एक्चुअल परचेस हो गया है, वो लोग घूम के आए हैं ऑलरेडी, लोगों के पास वो फील है, again they're going to actually purchase your next package from your organization is their behavior. then जब वो particular चीज हो रहा है, again they're going to think, राइट, कि नहीं ये लोग अच्छे हैं, कि ये पॉजिटिव है, दिस टाइम ये सब कुछ हुआ। इट्स ऑल अबाउट दैट सीक्वेंस। फर्स्ट वन इज बिहेव, फील, थिंक, नेक्स्ट वन इज फील, बिहेव, थिंक। एनी डाउट एनीवन? एनी डाउट एनीवन? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? हेलो मैम। ম্যাম একটা রিকোয়েস্ট ছিল। এনি ডাউট? না, আপাতত কোনো ডাউট নেই, যা বলেছেন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যদি আপনি লাস্ট আধ ঘন্টা সেশনটা কয়েকটা কোশ্চেন আছে আমার, যেগুলো লাস্ট ফাইভ ইয়ার এসছে, সেখান থেকে কয়েকটা প্রশ্ন খুব ডিফিকাল্ট আছে, সেগুলো ডিফিকাল্ট আছে। সেই ডিফিকাল্ট কোশ্চেনগুলো আমি বলবো, যদি একটু এক্সপ্লেন বলে দেন, অ্যান্সার করেন ব্যাস। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু ক্লাসটা করিয়ে নিই, ঠিক আছে। See, the travel buying decision sequence depends upon the following factors. First one is nature of decision making. जब भी आप जा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन। सो डिसीजन मेकिंग का नेचर क्या है, किसके ऊपर बेस करके आप फाइनली डिसीजन लेते हो। बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो लोग स्पेंड करते हैं नॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, बट दे लव टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों का डिसीजन ऐसे होता है, नहीं हम एक बार ही साल में घूमेंगे, लेकिन दैट मे बी ब्रांड। सो इट्स ऑल अबाउट देयर डिसीजन। जब भी वो लोग परचेस करते हैं, किस टाइप के परचेस के डिसीजन लेते हैं, वो लोग स्टेटस ओरिएंटेड लेते हैं, इकोनॉमिकल ओरिएंटेड लेते हैं, किस टाइप पे डिसीजन मेकिंग का नेचर क्या है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ टूरिज्म, दैट मींस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट kind of tourism they are. Next is risks involved in travel purchase. Travel purchase का जो रिस्क है, इस टाइप के रिस्क अवेलेबल है। इट्स टोटली मार्केटिंग थिंग, जो मैं यहाँ पे इतना डिटेल नहीं जाऊंगी लास्ट पॉइंट का, ठीक है।
some part is related with purchase risk. I think आप जो TS वन में है बेसिक में पढ़े होंगे और डिटेल में आप पढ़ोगे इसको TS जो आपके है TS6 इज रिलेटेड विद टूरिज्म मार्केटिंग, वही पे आप डिटेल पढ़ोगे, ठीक है. सो दैट रिस्क इन्वॉल्व विद ट्रैवल परचेज, they actually measure those things. Then जब ये तीनों डिसीजन साथ होते हैं तब भी वो लोग नॉर्मली एक पर्टिकुलर डिटेल आप देखोगे ड्यूरिंग परचेस लोग का पर्टिकुलर बिहेवियर को नोटिस करोगे, ठीक है. सी so they are a decision making process that external and environmental influence, that means ग्रुप दैट मीन्स किस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, किसके साथ आप नॉर्मली फ्रीक्वेंटली आप बातचीत करते हो, इट्स ऑल अबाउट देन योर कल्चर एंड सब कल्चरल कैटेगरी. नेक्स्ट इज योर सोशल क्लास एंड marketing efforts. Marketing efforts obviously is related with organization. Normally, group, cultural and subcultural thing and social classes it's related with your tourist group, and marketing efforts it's related with your stakeholders. That means जो लोग service providers हैं उन लोगों का part. Next is internal and individual influence, that is a perception, personality, learning, motives, attitudes. It's all about that psychological or your demographic segmentation part. नॉर्मली पर्सनालिटी कैसे होते हैं, पर्सनालिटी ऑब्वियसली रिलेटेड विद देयर लर्निंग्स, एजुकेशनल थिंग, और बहुत से फैक्टर में ऐसे होता है दोज आर नॉट, जैसे आप आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका मोटिव इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं उन लोगों का मोटिव होता है जस्ट फॉर फन, और दोज आर एक्चुअली एजुकेटेड एंड स्टेटस कॉन्शियस, दे एक्चुअली to maintain those kind of things. It's those points are related with internal individual influence. Attitudes. तो आप एटीट्यूड भी देखोगे, बहुत सारे लोग नॉर्मली आप सी बीच घूमना चाहते हो 2 दिन के लिए, आप मंदारमनी भी जा सकते हो, आप नॉर्मली दीघा भी जा सकते हो. तो जो लोग एक्चुअली एजुकेटेड पीपल है वो लोग रहने के लिए प्रेफर करेगा मंदारमनी, शायद एक दिन के लिए, एक हाफ के लिए वो लोग दीघा घूमते हैं. इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड्स, क्योंकि वो लोग को जानते हैं कि दीघा में बेसिकली लो प्रोफाइल टूरिस्ट जाते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड्स, योर पर्सनालिटी. ओके फाइन, यहाँ से हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं इतना, तो जो भी यहाँ पे अवेलेबल एडवेंचर्स, वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो जो ऑफर कर रहे हैं सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, स्टेक होल्डर्स है, दोज आर नॉट प्रॉपर्ली एजुकेटेड, नॉट प्रॉपर्ली स्किलफुल. लेकिन जब भी आप मंदारमनी पे जाओगे वहाँ पे प्राइवेट सी बीचेस आपको अवेलेबल होता है. प्राइवेट सी बीचेस में आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आर अवेलेबल. वो बेसिकली एक होटल सेंट्रिक होते हैं, तो होटल्स पे जो भी लोग हैं नॉर्मली वो लोग स्किल स्टफ, तो ये सब आप लोग ऑटोमेटिकली जज करोगे, ठीक है. सो देखो इसमें एक बाइंग जो प्रोसेस है उसके किस तरह से जा रहा है. फर्स्ट इज नीड रिकॉग्निशन. तो आप नाउ यू नीड टू फाइंड आउट, नहीं मुझे अब जाना है, मे बी दैट नीड व्हाई यू वांट्स टू गो एंड व्हेन यू वांट्स टू गो एंड वेयर यू वांट्स टू गो. दैट नीड फर्स्ट हमको ये सोचना है कि नहीं मुझे जाना है, और नाउ आई एम जस्ट pissed off, now I'm feeling claustrophobic, now I need to do, now I need to travel. That need, and that particular need you automatically you're going to recognize your area, your pattern and all. Next is information search. Okay fine, आप जब भी सोच रहे मुझे घूमने जाना है लेकिन इस साल मुझे सी बीच जाना है, या इस साल मुझे डेजर्ट जाना है, और इस साल मुझे कल्चरल रिलेटेड डेस्टिनेशन घूमना है, तो जब भी आपको इस चीज आप रिकॉग्नाइज करोगे देन यू नीड टू सर्च अकॉर्डिंगली. मे बी वो सर्च आपके वेबसाइट बेस्ड हो, मे बी वो सर्च आपके कोई गया हो, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, क्या आपके साथ कोई बात शेयर किया है, आप उसके बहुत इन्फ्लुएंस हुए हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ. या नॉर्मली वेरियस वेज आर अवेलेबल टू सर्च इन्फॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशंस, ठीक है. तो उन्हीं से हम इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड ऑल. देन एटीट्यूड फॉर्मेशन. व्हाट इज एटीट्यूड फॉर्मेशन? जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि আরে বাবা এখানে যাব, এখানে তো ভালো লোকেরা যায়ই না, এখানে একটু বাবা একটু চল এমন জায়গায় যেখানে একটু एजुकेटेड स्टेटसफुल लोग जाए. और बहुत सा टाइम ऐसे भी होता नहीं मेरे फ्रेंड यहीं पे गए या मेरे ये रिलेटिव यहीं पे गए, हमको यहीं पे जाना है, या आपके बहन ऑस्ट्रेलिया गए
तो मुझे आप न्यूजीलैंड लेके चलो। इट्स ऑल अबाउट दैट स्टेटस जो आपके देखो एटीट्यूड में है কি বলছো আমরা এখানে কেন যাব ওখানে তো বারবার গেছি একা একা বারবার ভিজিট করব ইটস অল অ্যাবাউট योर एटीट्यूड Next is evaluation of your alternative. आप evaluate करो जो alternative options are available. So वहीं पे आप evaluate करो which one is best. Okay fine. सी बीच में कितने सारे ऑप्शंस है जहाँ पे देखो पुल फैक्टर आ रहा है जहाँ पे आप लोग अवेलेबल जो सर्विसेज है एमिनिटीज है आप उसको आप क्या करो इवेल्युएट करो which one is best. नेक्स्ट जब भी आप इवेल्युएट करके आप डिसीजन फिक्स करोगे देन आप परचेस करो ठीक है देन परचेस करने के बाद आप एक्चुअल आप जब डेस्टिनेशन घूमने के लिए जाओगे तो आप फिजिकल एक्सपीरियंस करोगे ड्यूरिंग परचेस आप मेंटल एक्सपीरियंस करोगे थ्रू वर्चुअल टूरिज्म और थ्रू दैट फिजिकल एविडेंस जो है हम लोगों के पास थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो और ऑडियो क्लिप जो भी है. नेक्स्ट पोस्ट परचेस वो लोग परचेस कर लिया आपके साथ गए आप किस तरीके से उसको एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स और एज अ टूरिज्म जो डेस्टिनेशन कैसे आप उस टूरिस्ट को एक गुड मेमोरी दे रहे हो जिसपे आप एक्चुअली फीडबैक देगा मे बी एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था सर्विस इंडस्ट्री इज फुल्ली रिलेटेड विद फीडबैक ओरिएंटेड इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद टूरिज्म इट्स ऑल अबाउट टूरिज्म hotel, aviation, banking, hospital. It's all about feedback oriented. Feedback oriented. अगर फीडबैक खराब हो तो नॉर्मली कोई लोग जाना पसंद नहीं करते रिमेम्बर बहुत से टाइम में फ्रीक्वेंटली कंप्लेन आ रहा था अबाउट एप्पल का तब बहुत प्रॉब्लम होता तो अब एप्पल को क्या करना पड़ा एप्पल को तो बहुत सारे पैसे उनको इन्वेस्ट करना पड़ा बहुत सारे मूवीज में जहाँ पे थ्रू मूवीज उन लोग एक मास में हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ रहे हैं देखो ये पे मूवी पे देखो ये हो रहा है इतने सारे सर्विसेज है ये सारे एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं ठीक है सो स्पेंड करना पड़ा टू जस्ट चेंज देयर इमेज और डेवलप देयर इमेज ठीक है सो परचेस के बाद आप किस तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किस तरीके का आप उसको एक्सपीरियंस दे रहे हो वो आपका प्रॉपर्ली अगर पॉजिटिव फीडबैक आया तो जो आपके परचेस किया वो रिपीट परचेस करेंगे और वो वर्ड ऑफ माउथ आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है जो भी है उसको वो लोग प्रमोट करेंगे ठीक है मे बी योर डेस्टिनेशन हो सकता है मे बी होटल हो सकता है मे बी ट्रैवल इंडस्ट्री ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रैवल एजेंसी हो सकता है जो भी है ठीक है tourism tourist buying process it's all about their psychological thing it's all about their financial thing it's all about their कुछ बोलो कहाँ भी था कि फोन पर क्या हो पाँचटा সময় গাড়ি করবে so tourist buying process it's all about their whatever information you actually provide, those must be satisfactory. What actually during travel, what's they actually experience, actual experience, those must be satisfactory. And any sort of word of mouth promotion, which is very important for any service industry, those must be positive. Okay, उसको भी positive होना. Okay. So those are the buying process mainly. See, there is a major 4 buying process. So first one is problem solving and its process. That means आप खरीदे हो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वहीं पे अगर आप नॉर्मल इसको सर्विस जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मे बी हो सकता है उन लोगों का वो लोग आप जो प्रॉमिस किए थे वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहा लेकिन आप लोग वहीं पे चेंज करके कुछ नया चीज़ उसमें करने की कोशिश कर रहे हो या उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो आप उसको हेल्प कर रहे हो टू सॉल्व ऑल दोस थिंग्स which actually create a good image maybe as an organization basis और एज ए डेस्टिनेशन में भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि शायद वो लोग बहुत ऐसे जगह से पैकेज खरीदे हैं जहाँ पे वो लोगों को ट्रांसपोर्ट ऑफर नहीं किया गया लेकिन वो लोगों को तो घूमना चाहिए तो वो लोग जो होटल में रहे हैं वहीं पे ट्रैवल बेस्ड है जहाँ पे वो लोगों का आप क्या सॉल्व कर रहे हो कि वो लोग नॉर्मली कैसे घूमेंगे क्या करेंगे दैट काइंड ऑफ थिंग आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है
Next is all about their जो भी आप वहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं आपको ये जाके ये मिलेगा, दैट नॉवेल्टी एंड दैट सस्टेन, जो इंटरेस्ट देके आप लेके गए हो, दैट पार्ट और दैट काइंड ऑफ थिंग, आपको जितने भी सारे एक्टिविटीज है उसको ऐसे ही करना है कि जो चीज़ आप कमिट किए हो अबाउट दैट एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सचेंज, एनी सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो आप प्रॉमिस करके भेजे हो कि नहीं आप जाओ वहीं पे आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ये सब कुछ होगा, वो आपको वहीं पे प्रोवाइड करना है। आपको जो भी करना है एक्चुअल एक्सपीरियंस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है उस पे जो जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं वो लोग, तो जियो ऑब्वियसली जियोग्राफ हम लोग क्या बोल रहे हैं, यू हैव टू स्पेंड योर time far away from your residence as well as your workplace. That is geographically आप कहीं दूर जा रहे हो, तो जब भी आप geographically दूर जा रहे हो तो जब तो any sort of safety security related thing, any sort of other supportive thing उन लोगों को आपको प्रोवाइड करना, क्योंकि वो लोग geographically बहुत दूर है। मे बी अगर आप जियोग्राफिकली वेरियस नेचुरल जो चीज हम लोग लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, सारे के सारे चीजों से हम लोग दूर जाते हैं। और जब हम लोग सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, और बहुत सारे पैसे भी बहुत लोग देखते हैं कि एक्चुअली प्रेफर कि हम यहीं पे जा रहे हैं तो इस टाइप डेस्टिनेशन को ढूंढेंगे, या जो कंट्री टूरिस्ट है तो वो डिफरेंट टाइप की चीज लेंगे, तो डिफरेंट सर्विस करना है, एंड अदर इस टाइप के आप सर्विस को प्रोवाइड करोगे। वर्ड ऑफ माउथ अगर आपके डेस्टिनेशन क्रिएटर प्रॉपर्टी जाता है या आपके ऑर्गेनाइजेशन जाता है जो आपको इन्हांस करता, ठीक है। ম্যাম ভীষণ ক্র্যাক করছে, কিছু শোনা যাচ্ছে না, ভীষণ ক্র্যাক করছে। কেটে যাচ্ছে আপনার আওয়াজ। আচ্ছা হ্যালো, আপনি অডিবল বলছেন তো? নাও ইউ অডিবল, নাও ইউ অডিবল। past is cold, तो जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे शायद बहुत कोल्ड हो या बहुत हॉट हो जहाँ पे आपके रेसिडेंस है, तो आपका डिजायर क्या हो, आप प्लेस पे आप जाओ जहाँ पे प्लेस है। ম্যাম আপনি সাবনেটে কাজ করতে পারেন, স্ক্রিনটা অফ করে দিয়ে আপনি পড়াতে থাকুন, নয়তো আপনার ভয়েসটা ভীষণ ক্র্যাক করছে। আপনি স্ক্রিন অফ করে দিয়ে আপনি আপনার মতো করে পড়ান প্লিজ, সেটা সুবিধা হবে। Now it's okay. Next is LTC. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से LTC प्रोवाइड किया जाता है, लीव दिया जाता है, ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन इज नोन एज LTC। तो वो बहुत सारे लोग जस्ट वो LTC को यूज करने के लिए वो लोग घूमने जाते हैं। नेक्स्ट लुकिंग एट नेबर कमिंग बैक फ्रॉम टूर, जहाँ पे आपके शायद नेबर हो या रिलेटिव हो, जहाँ पे वो लोग घूम के आ रहे थे, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, ओके, जहाँ पे उन लोगों से आप सुन रहे हो, बहुत दिन आप घूमने नहीं गए, तो आप क्या होगा, आप भी आपके जो नेबर है या रिलेटिव है, यू ऑल्सो लाइक टू ट्रैवल लाइक योर नेबर, लाइक योर रिलेटिव, इट्स ऑल्सो नोन एज वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। आप कभी भी फॉरेन ट्रैवल नहीं किए, so you like to visit any foreign destination for touristic purpose, which also help you to enhance your status, social status, right? So ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉर्मल या पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ टूरिज्म को आपने एंजॉय नहीं किया, लाइक आपने कभी शायद सी बीच नहीं देखे होंगे, या आप शायद हिल एरिया पे कभी नहीं गए होंगे, या आप कभी एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं करे होंगे, लेकिन यू एक्चुअली लाइक or you actually wants to visit those destinations, or wants to experience those kind of touristic activity. It's also another thing which influence you to purchase any tourist in the package.
एंड आपके वो पोस्ट परचेस क्या होता है? पोस्ट परचेस इज ऑल अबाउट योर सर्विस प्रोवाइडिंग पैटर्न, that satisfaction level of your target customers and what kind of support you actually provide. ठीक है, इसमें क्या होता है, वो सपोर्ट अगर आप देंगे तो इट्स ऑल अबाउट दैट सपोर्ट, जो आपकी फीडबैक होगा वो प्रॉपर होगा इंडस्ट्री, एज वेल एज वर्ड ऑफ माउथ भी, वो लोग जो आपकी सर्विस को एंजॉय कर रहे हो या पर्टिकुलर आपके डेस्टिनेशन पे विजिट कर रहे हो, तो वो भी आपके ये जो प्रॉपरली वो लोग एंजॉय कर रहे हो. सो व्हेन यू एक्चुअली प्रिपेयर योर टूर, ठीक है, that time you need to understand their need, what actually they want to visit, to identify their your group of that need of the group and prepare a package accordingly. Next, experiencing the tool. After preparing a tool, then experience, that is what kind of service you actually provide during that tool. What kind they actually experience in their tool. It's another element. नेक्स्ट इज एंडिंग द टूर. जब टूर एंड हो रहा है तब किस स्टेट में आके वो एंड हो रहा है, हैप्पी मोमेंट और इट्स अ सेमी हैप्पी मोमेंट और इट्स अ नेगेटिव मोमेंट. यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट थिंग एंड जजिंग टूर. बिकॉज जब भी हम लोग पढ़ाते हैं ना आप लोगों को, आप लोग अच्छा है, ओके मैं बुरा है, जो भी हो, वी नीड to actually access our service. Okay, मैंने आज ये पढ़ा, ये मैंने प्रॉपरली पढ़ के नहीं पढ़ा, अपना प्रॉपर आज मैंने उन लोगों को पढ़ा नहीं पाया, और भी चाहते तो और कुछ भी पढ़ा सकते थे, और भी चाहते थे तो इन्फॉर्मेशन दे सकते थे. या आज तबीयत ठीक नहीं है, आज तो ठीक तरह से नहीं पढ़ा पाए, ओके आज जो सब्जेक्ट पढ़ा इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिए. सो दैट मीन्स यू नीड टू जज, यू नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ. तो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, यू नीड टू जज. क्योंकि फाइन ये लोग मेरे सर्विस खरीदे थे, मैंने इस टाइप के सर्विस प्रोवाइड किए, सो दैट सर्विस जो मैंने कमिट किया था वो कमिटमेंट मैंने रख पाया, और सर्विस व्हाट एवर सर्विस आई प्रोवाइडेड, सो वो अप टू द मार्क है या नहीं, दोस थिंग्स यू नीड टू असेस. बिकॉज इस असेसमेंट से ना आप अपने जो फ्यूचर में भी जो भी आप रिक्रूट करोगे उसको आप रेक्टिफिकेशन करके आप वो एक्टिविटीज करोगे, या अगर फाइंड आउट किए कि नहीं एनी दिस थिंग्स आर नॉट गुड, those kind of activities are not good, तो आप उसको क्या करोगे, तो आप डैमेज कंट्रोल के लिए आप एक पीआर एक्टिविटी करोगे विद द पर्टिकुलर ग्रुप, जहाँ पे वो लोग अनॉयड है, इस तरीके से उसको आप मेंटेन करोगे. यू नीड टू मैनेज ऑल दिस. सो व्हिच वे यू एक्चुअली जजिंग द टूर. प्री टूर एक्सपेक्टेशन, जब आप कहीं से जा रहे हो या डेस्टिनेशन के आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो प्री टूर आपका कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, घूमने जाने से पहले एक्चुअल कुछ जो आपका कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है. एंड जो पोस्ट टूर या ड्यूरिंग टूर पे आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो या घूम के आने के बाद पोस्ट टूर जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, यू इजीली कंपेयर बिटवीन दिस टू, प्री टूर एक्सपीरियंस एंड योर पोस्ट टूर एक्सपीरियंस. ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे. आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, एक्सपेक्टेशन हुआ या किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको हुए, यू एक्चुअली कंपैरिजन दिस थिंग्स, कि आपको जो कमिट किया गया था वो आपको किया गया है या नहीं, ऑल दोस थिंग्स यू एक्चुअली अगेन यू इवैल्यूएट, राइट. कंपैरिजन मींस यू एक्चुअली इवैल्यूएट. तो अंडर दैट कंपैरिजन द फर्स्ट वन इज सैटिस्फैक्शन, कि जो आप एक्सपेक्टेशन है तो उस एक्सपेक्टेशन सेटिस्फेक्शन आया या नहीं. दैट सेटिस्फेक्शन क्या मैंने किया था इससे ज्यादा मिला, या एक्सपेक्टेशन जो था हाँ ठीक है फाइन आई एम सेटिस्फाइड, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वही फुलफिल हुआ, नहीं जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ. दैट मीन्स वो कंपैरिजन करने से मिलेगा, दैट सेटिस्फेक्शन था. Next is confirmation. Confirmation is all about experience and expectation का जो ये होता है वो इक्वल हो गया तो फाइन, ओके चलो जो है वो ठीक है, जो मैंने सोचा था वही है, ठीक है ठीक है, आई एम सैटिस्फाइड विद इट. दैट इज कॉल्ड confirmation. नेक्स्ट इज डिससैटिस्फैक्शन. अगर आपका जो एक्सपेक्टेशन था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर जहाँ पे आप वो ऐड देके आप उस डेस्टिनेशन को चूज करके आप बुकिंग वगैरह किए थे, वो अगर आपको सेटिस्फैक्टरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हो, इट्स कॉल्ड डिससैटिस्फैक्शन. ठीक है, सो हाँ
which actually the which way you actually judging the two, your expectation and all. So travel motivations, you can actually divide entire travel motivation mainly in five parts. First one is physical, second one is cultural and psychological, third one is social and interpersonal and ethnic, fourth one is entertainment and pleasure, fifth one is religious motives. So physical motivation is all about that sports activity, that adventure activities and all. Okay, that resting, relaxation, it's all about health and fitness oriented thing. It's related with your physical factors or physical components. Next is psychological and cultural component, is you actually wants to learn from others' culture, or he wants to actually enhance your psychological needs through visiting any destination. It's how cultural and psychological needs or psychological motivation happens. Next is social, interpersonal and ethnic. It's all about when you actually like to visit your root, जहाँ पे आपका रूट है, ठीक है, शायद आप कोलकाता में रह रहे हो लेकिन आपके एक्चुअल आप राजस्थान के हो, या आप यूएस में रह रहे हो, आप बेसिकली आपका ओरिजिन है इंडिया, यू एक्चुअली वांट्स टू एक्सप्लोर योर रूट, इट्स कॉल्ड एथनिक। एंड आप अगर किसी दोस्त या आपके रिलेटिव के शादी या फ्यूनरल एनी सॉर्ट ऑफ थिंग में आप विजिट कर रहे हो, इट्स ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड सोशल एंड इंटरपर्सनल थिंग। नेक्स्ट आप entertainment and pleasure. Entertainment and pleasure is related with shopping. आप कहीं पे विजिट कर रहे हो नेशनल पार्क, या एक्चुअली आप एंजॉय कर रहे हो नाइट सफारीज एंड ऑल, और आप स्पेशल इवेंट के लिए एंजॉय करने के लिए गए हो, इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर। रिलीजियस पर्पस में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, जहाँ पे पिलग्रिमेज, जहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, फोर धाम्स फॉर हिंदूज, और भी जो भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी का भी कुछ pilgrimage destinations होते हैं, when they actually like to visit those destinations, it's the motive is religious. It's all about travel motivations. That's all. So now you people tell me any doubt, anything you want to add, or uh, anything. ম্যাম প্রশ্নগুলো করার আছে, করতে পারি? আগে টপিক রিলেটেড বলো, টপিকে কোনো কিছু বলার আছে? না ম্যাম, কিছু বলার নেই। কারো টপিক রিলেটেড কিছু, anyone, Judy, Shushmita, Rimpa, Shagnik, anyone wants to discuss about the না topic? ম্যাম বুঝেছি। Okay, fine. হ্যাঁ রাজেশ্রী বলো। হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম যে আমার প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে, এক মিনিট, মাই ফার্স্ট রিসোর্স পার্টিশনিং কাকে বোঝায়? হোয়াট ইজ দ্য ইকোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ রিসোর্স পার্টিশনিং? কোশ্চেনটা পুরো বলো। What is resource partitioning? What is the ecological significance of resource partition? পার্টিশন কাকে বলে? দ্যাট মিন্স ডিভিশন। ঠিক Yes, আছে, দেন হ্যাঁ। তোমাদের এখানে ইকোলজিক্যাল যে জিনিস ফ্যাক্টরস গুলো বলছো, দেন সেইগুলো তুমি লিখবে। আচ্ছা, explain the basic framework for developing a tourism master plan and the various components which can be included. A tourism master plan বলতে কি বোঝায়? Explain the basic framework for developing a tourism master plan and the various components. তোমাকে যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে যতগুলো প্ল্যানিং এন্ড পলিসি তোমাদের ছিল না, ট্যুরিজম প্ল্যানিং এন্ড হ্যাঁ, tourism planning বলছো ওর মাস্টার মধ্যে। প্ল্যান, হ্যাঁ ওইখানে তোমার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝে গেছি। আর নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে, discuss the major circuits or destinations that have been identified for concentrated tourism development in India by Ministry of Tourism, Government of India. যতগুলো সার্কিট আছে, আমি আগের দিন বলছিলাম যে অনেকগুলো সার্কিট আছে, সেই সার্কিটগুলো আচ্ছা সার্কিটটা আমি একদিন ক্লাসে করে দিই। আচ্ছা, পলিটিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট বলতে কি বোঝায়? পলিটিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট কোশ্চেনটা বলো। এটা বলছে রাইট শর্ট নোটস অন পলিটিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট। পলিটিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট কোশ্চেনটা আমার কাছে ঠিক ক্লিয়ার হলো না।
আমি একটা প্রশ্ন ধরে বললে বুঝতে হবে। What is mean by politics of environment? Explain the examples of India vis-a-vis global affairs. ওকে, Question দ্যাট number, ইজ পলিটিক্স যেটা বলছে, তার মানে এটা আমার মনে হয় দেখ তোমাদের যে এটা তোমার TS5 এর কোশ্চেন, রাইট? হ্যাঁ রাইট রাইট রাইট, আমি টিএস স্যারের কোশ্চেন ধরে তো বলছি। ওই একদম ওই ফার্স্ট ইউনিট ফার্স্ট ইউনিট, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। আহ, 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 একটা কোটেশন আছে, দ্য কালচার অফ আ কান্ট্রি ক্যান বি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেট ফর ইট ক্যান বি মার্কেটেড টু, the culture of a country can be an important asset for it can be marketed to foreign tourists. Comment. কেটে কেটে যাচ্ছে, বলো রাজেশ্রী, শুনতে পাচ্ছি। আবার বলছি, the culture of a country can be an important asset for it can be marketed to foreign tourists. Comment. ওই যে আমি একটা কথা বললাম যে ট্যুরিজম হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম বা এমন একটা স্টেজ where you actually represent your culture. Culture in the sense, culture not only about our societal framework. Culture means আমাদের societal beliefs, আমাদের religious pattern, আমাদের mythological beliefs, আমাদের performing arts, আমাদের handicrafts. তো এগুলোকে আমরা কি করি, ফরেনার্সদের কাছে আমরা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করি থ্রু ট্যুরিজম। সো ট্যুরিজম ইটস আ টুল or it's a performing stage actually where we actually represent our culture. Those are not belongs to our society or not belongs to our culture. So এরকম ভাবে তোমাকে ওটাকে এক্সাম্পলস পুট করে করে ভ্যারিয়াস অ্যাঙ্গেলে লিখতে হবে। সেখানে তুমি আমাদের মাইথোলজি দেবে, সেখানে তুমি আমাদের ভ্যারিয়াস আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ ভার্সাটাইল কালচার আছে, অ্যাবাউট ভার্সাটাইল কালচার রিলেটেড দেবে, আমাদের রিলিজিয়াস অ্যান্ড কালস রিলেটেড দেবে। দোজ আর অ্যাকচুয়ালি প্রচুর লোক ফরেনার্স লাইক টু অ্যাকচুয়ালি এক্সপিরিয়েন্সিং দোজ থিংস। প্রচুর লোক বিয়ে, শ্রাদ্ধ, কিভাবে মুন্ডন হয়, মানে রাইস সেরিমনি দেখবে, ট্রাভেল এন্ড লিভিং এগুলো দেখতে আসে। তারপরে দেখবে আমাদের হ্যান্ডিক্রাফট, আমরা বিভিন্নভাবে হ্যান্ডিক্রাফট সেল করি, লিভিং হেরিটেজ যেগুলোকে আমরা সেল করছি। পুরো জিনিসটাকে সাজিয়ে লিখতে হবে, পুরো জিনিসটাকে সাজিয়ে লিখতে হবে, মানে কোনো পার্টিকুলার ইয়ের মধ্যে নেই, কোনো পার্টিকুলার ইউনিটের মধ্যে নেই, পুরো জিনিসটাকে সাজিয়ে। কোশ্চেন তোমাকে পুরোপুরি, কারণ এগুলো অল আর কম্পোনেন্টস অফ কালচার, দ্যাট হ্যান্ডিক্রাফট, দ্যাট টেক্সটাইল, দ্যাট the performing arts, that other type of our religious factors, our mythological beliefs, those are component of our culture. And foreigners are not belongs to that particular culture and they wants to explore, because India is এক একটা যেমন থাকে না, ধরো কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়া ইজ ভেরি এনরিচ ফর দ্যাট ন্যাচারাল ভিউজ, কোনো একটা ডেস্টিনেশন ইজ ভেরি এনরিচ ফর দ্যাট আর্কিওলজিক্যাল থিং। বাট ইন্ডিয়া এমন একটা দেশ যেখানে কালচারটা ভ্যারিয়াস অ্যাঙ্গেল থেকে খুব এনরিচ, কারণ এখানে অনেক ডাইনেস্টি এসছে, ক্রস কালচারাল থিং এখানে প্রচন্ড প্রমিনেন্ট, যেটা তুমি অন্যান্য কান্ট্রিতে দেখতে পাবে। বিকজ ভ্যারিয়াস ডাইনেস্টিতে আমাদের যখন তুমি আর্কিওলজিক্যাল স্কাল্পচার নিয়ে বলবে, তখন তুমি যখন ডিসকাস করছিস অল অ্যাবাউট ভ্যারিয়াস dynasties. It's all about that cross-cultural thing. When you're actually talking about that performing arts, again, it's also a core and cross-cultural influence. As you actually mentioned all these things. And then our Ayurvedic thing. Ayurvedic thing are also related with our mythological beliefs. I mean, for example, দিছিলাম শিরোধারা। নেক্সট বলবো, নেক্সট কোশ্চেন বলতে পারি? রোল অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ এ মিউজিয়াম অ্যাজ এ ট্যুরিজম প্রোডাক্ট। রোল অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ এ মিউজিয়াম, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তো আগের দিনই বলেছি। ঠিক আছে, বুঝে গেছে। রাইট শর্ট নোটস অন ফলোইং। সিনক্রেটিক ট্র্যাডিশন বলতে কি বোঝায়? সিনক্রেটিক ট্র্যাডিশন, SYNCRETIC, সিনক্রেটিক ট্র্যাডিশন, এটা বলতে কি বোঝায়? এটা আননোন টার্ম, দেখে বলতে হবে, এটা আমার একটু মনে পড়ছে না। এটা কোন ইউনিটে পড়বে? আমার একদমই শর্ট নোট আমার একটু মনে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে।
আরেকবার একটু বলো। রাইট আমি শর্ট তোমাকে নোটস, বলে দেবো, রাইট শর্ট তাহলে নোটস অন। লিখে পাঠিয়ে দিও তো আচ্ছা গ্রুপে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি গ্রুপে তুমি গ্রুপে আমাকে মেসেজ আমি করে শেয়ার দিলে, করে আমার দেবো। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, আমার ট্রাইবাল এই মুহূর্তে মনে আইডেন্টি, পড়ছে না। রাইট শর্ট নোটস অন ট্রাইবাল আইডেন্টিটি ফর্মেশন, ট্রাইবাল আইডেন্টিটি এটা আছে, ফর্মেশন। ট্রাইবালে তুমি পেয়ে যাবে। আচ্ছা ট্রাইবাল আইডেন্টিটি, তুমি আমাকে ট্রাইবালকে প্রমোট করবে, কোনো ট্রাইবালের ওখানে তুমি ভিলেজে তুমি ওয়াক করাবে, দ্যাট টাইম তোমাকে মেবি তাদের অরিজিন হয়তো সেম, বাট বিলিভস আলাদা, হুম কস্টিউমস আলাদা, হুম লাইফস্টাইল আলাদা। তো ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দেয়ার ইউনিকনেস না। হুম এক্স্যাক্টলি। এটা তুমি ট্রাইবসে পেয়ে যাবে। ইভেন ট্রাইবস আমি পড়িয়েও দিয়েছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম, রাইট শর্ট নোটস অন পড়িয়েছিলাম না প্যাপিয়ার, রিম্পা? হ্যাঁ ম্যাম আপনি পড়িয়েছেন এটা। রাইট শর্ট নোটস অন হ্যাঁ বলো। প্যাপিয়ার ম্যাচে ওয়ার্ক, প্যাপিয়ার ম্যাচে ওয়ার্ক, কি? PAPIER, PAPIER, এটা এটা হ্যান্ডিক্রাফটে পাবে, এটা হ্যান্ডিক্যাপ্ট, হ্যান্ডিক্যাপ্ট, আচ্ছা প্যাপিয়ার ম্যাচ ওয়ার্ক। আচ্ছা, how do unity in diversity, characteristics of a Indian culture contribute to tourism? Substantiate your answer with appropriate examples. How do, under quotation, unity in diversity, characteristics of Indian culture contribute to tourism? Substantiate your, পার্টিকুলার ইয়েতে পাবে। এই যেটা বললাম, আচ্ছা এইটা আর ওই কোশ্চেনটা অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট, তোমাকে এটা ওরকম ভাবে লিখতে হবে নিজে আচ্ছা, থেকে বলবে। what is what কালচার is কম্পোনেন্ট। what is NBPW? What is NBPW? Why is the NBPW, NBPW? Capse. What is NBPW? Why is this pottery considered important for knowing Indian civilization? NBPW. Northern Black Polished Bag. It's a part of handicraft. আরে বলুন, লিখে নি পুরোপুরি। নর্দার্ন Northern Black Polished Bag. এটাও আমার কিন্তু ছবি দিয়ে বলা ছিল। ব্ল্যাক পলিশড Where? ওয়্যাক, WRE, Where? Where? WARE. ওয়্যার, আচ্ছা এটা আমি পড়ানো ছিল বাবা, এটা আচ্ছা পড়িয়ে আচ্ছা। দিয়েছিলাম। এটা পড়িয়ে দিয়েছিলাম। Define the term identity and explain its various types. Why is an understanding of a concept of identity important for tourism professional? Identity is related with tribal identity. এটা ট্রাইবাল না, ট্রাইবাল ট্যুরিজম, আচ্ছা লিখে নিচ্ছি ট্রাইবাল ট্যুরিজম। আচ্ছা, how is the architecture of Shah Jahan's reign different from Akbar's? Architecture of Shah Jahan's, নিজেকে করতে হবে বাবা, এগুলো তো আমি কি বলবো, এগুলো তোমাদেরকে আমি বেসিক জিনিসগুলো বলে দিয়েছি, মুঘল আর্কিটেকচার, মুঘল এগুলো সব, এগুলো এবার তোমাকে নিজেকে রেফারেন্স ওয়ার্ক করে করতে হবে, এখানে আমার কিছু বলেনি। আচ্ছা একটা প্রশ্ন আছে, লাস্ট প্রশ্ন। Discuss the organization of artisanal production in pre-British India and the subsequent decline during the colonial rule. এটা বোধহয় বই থেকে পড়তে হবে। এটা দেখবে বলতে পেলে ভালো, না হলে রেফারেন্স ওয়ার্ক করতে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। এনিথিং আর কেউ কিছু বলতে চাও about assignment, about old questions, anything? Rimpa, anything you want to discuss? Juhi, Shushita, ম্যাম 20 মার্কস একটা বড় প্রশ্ন আছে, কিন্তু এটা একটু মানে মানে খুব খটকা প্রশ্ন। হোয়াট ডু মিন বাই নৃত্য? আপনি পড়িয়েছিলেন যদিও, প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে 10 মার্ক লিখতে হবে, হোয়াট ডু মিন বাই নৃত্য মানে নাচের ওপর। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট ফ্রম, হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট ফ্রম অভিনয়? মানে অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যর ডিফারেন্সটা বলতে হবে। আমি ওইখানে একটা তোমাদের যখন ডান্স নিয়ে পড়িয়েছিলাম, তখন আমি তোমাদেরকে কিন্তু নৃত্য এগুলো আমি সব কিছু পড়িয়েছিলাম। সেখানে মাইম কোনটা কোনটা তোমার বডি ইয়ে, তার সাথে কোনটা তোমার মাইম যাচ্ছে, মনে আছে? অভিনয়া,
এগুলো কিন্তু আমি পড়িয়েছিলাম। ইভেন আমি যে যেটা দিয়েছি তুমি স্টাডি মেটেরিয়াল গুলো যারা পিপিটি দেখে দিয়েছি সেগুলো কি একবারও দেখেছো? হ্যাঁ, পুরোপুরি দেখিনি, সাফ করে আমি জাস্ট কালকে প্রিন্টেড বার করেছি। হ্যাঁ, আমি দেখছি আস্তে আস্তে, স্লোলি স্লোলি আমি লুকিং করেছি। আমি দেখে নেবো, ঠিক আছে দেখে নেবো ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এনিথিং? এবার আমি কটা কোয়েশ্চেন করি। যদি প্লিজ আনমিউট yourself. जुही, डोंट वरी, अनम्यूट योरसेल्फ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है मैम। है। मुझे एक चीज बताओ, ठीक है? आप अब कोविड है, कोविड तो कुछ दिन बाद तो ये ठीक हो जाएगा, फिर आप घूमने जाना चाहोगे, ठीक है? अभी आप घूमने जाना चाहोगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिसको आप कंसीडर करके ही घूमने जाना चाहोगे? Which are those factors which you like to consider during your travel post-COVID? Guidelines followed by the national and রাজেশ্রী international. প্লিজ আমি একটা কোয়েশ্চেন, রাজেশ্রী আমি একটা কোয়েশ্চেন করেছি জুবিকে, প্লিজ নাও মিউট योरसेल्फ। यस जूही, प्लीज कंटिन्यू। मैम पहले तो सेफ्टी के बारे में सोचेंगे जहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद भी मतलब सब पहले की तरह ठीक होगा कि नहीं पूरी तरह। तो अब सेफ्टी के बारे में, फिर हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैसा मतलब व्यवस्था है जहाँ हम रुकेंगे, जिस होटल या रिसोर्ट में। और जैसे कि बताओ डोंट वरी। हाँ मैम अच्छी जगह पे सोच के बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम अच्छे नहीं। होटल में रुकेंगे जहाँ मतलब अच्छी से साफ सफाई और का ध्यान रखा जाए। और और हम लोग जो चाहे मतलब वो सर्विस हम लोग को मिले वहाँ से। जैसे कि सी बीचेस भी देखने जा सकते हैं या ऐसे। That group size, that financial part, डेस्टिनेशन चॉइस। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम पे तो तुम कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे? और मैंने इस ऑलरेडी डिस्कस भी किया था क्लास में। ओके प्लीज रिम्पा, प्लीज व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? जूही प्लीज म्यूट योरसेल्फ, रिम्पा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रिम्पा, हाँ मैम। ऑडिबल टू यू? यस मैम। সো পোস্ট কোভিড তুমি যদি ঘুরতে যাও, ধরো তুমি পোস্ট কোভিড তো ঘুরতে যাবে নাকি বাড়িতে তো বসে থাকবে না। সো হোয়াট আর দ্য পয়েন্ট which you consider when you choose any destination for a touristic purpose? So tell me the conditions or tell me the factors. ম্যাম আমার আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা কথা বলতে চাই, পোস্ট আফটার কোভিড সিচুয়েশন। ধরো এটা তোমাদের পরীক্ষায় এসছে, এটা ধরো তোমাদের পরীক্ষায় এসছে, দেন কন্টেনিং 20 মার্কস आंसर, কিভাবে লিখবে? প্রথমে তো ডেস্টিনেশন চুজিং এর ব্যাপারটা আসছে। তো সেক্ষেত্রে আমার মতে বেশি দূরে কোথাও ঘুরতে না যাওয়াটাই ভালো। কাছাকাছি কোনো জায়গা যেখানটা short haul. The term is short haul. হ্যাঁ, The term is short haul. Short haul. HAUL haul. Short haul. হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে সেটা প্রকৃতির কোলে কোনো সুন্দর জায়গা, পাহাড় বা কাছাকাছি আমাদের এখানে কাছে যেমন পুরুলিয়া আছে, তো সেখানে অযোধ্যা পাহাড় ঘুরতে যাওয়ার জন্য 2-3 দিনের জন্য ভালো জায়গা। তো আমি ওটাকেই প্রেফার করব। আর সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এই যে দেখো তোমাদের নাম্বারটা কেন কম ওঠে, তোমাকে আমি কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস
which you consider during your post COVID travel purchase, ঠিক আছে? সো তুমি শুরু করলে খুব ভালো হবে, বাট তোমার চলে গেল ওখান থেকে পার্টিকুলার একদম পুরো ট্র্যাক ছেড়ে অন্য জায়গায়, এই যে ব্যাপারগুলো হলো। এবার যখন ট্র্যাক ছেড়ে অন্য জায়গায় বেরিয়ে যাও, তখন আর ট্র্যাকে ফিরতে পারো না। জিজ্ঞেস করেছিল চাল, তুমি চলে গেছো গমে, এবার গম থেকে তো আর চালে ফিরতে পারছো না। এই জন্য নাম্বার, এই জন্য আমরা সবসময় কোয়েশ্চেনের আনসার করতে পারি। এতে কি হয়, নিজেদের না ফলস গুলোকে আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি, আর বিফোর এক্সাম তোমাদের যে কাউন্সিলর থাকছেন উনি তোমাদের রেকটিফাই করে দিতে পারেন, ফাইন তুমি এই জায়গাটা কিন্তু ভুল যাচ্ছ, এটা তোমাকে এমন করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি ফ্যাক্টরস গুলো লিখবে, এবার তারপরে কোনো একটা পার্টিকুলার কেসলেট মেনশন করবে অ্যাজ মানে অ্যাজ এন এক্সাম্পল। আমি ফ্যাক্টরস গুলো দিয়ে দিয়েছিলাম, রিমেম্বার পোস্ট কোভিড যে ট্যুরিজম প্র্যাকটিস হ্যাঁ সিস্টেম ম্যাম, থাকবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই ফ্যাক্টরস গুলোকে আচ্ছা ম্যাম, ফার্স্টে লিখবে ওইগুলো ট্যুরিজমটা কি, হুম, সেটা ফার্স্ট লিখবে ট্যুরিজমটা কি, ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির বেসিক জিনিসটা কি, এটা সার্ভিস বেস ইন্ডাস্ট্রি, ফিডব্যাক ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি, ফ্রাজাইল ইন্ডাস্ট্রি, এনি শর্ট অফ তোমার এনি শর্ট অফ মানে তোমার কি বলবো সিচুয়েশন অ্যাকচুয়ালি অ্যাফেক্ট দ্য পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি, মেবি সেটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনফ্লেকশন হতে পারে, সেটা পলিটিক্যাল কোনো আনরেস্ট হতে পারে, সেটা হেলথ রিলেটেড কোনো হ্যাজার্ডস হতে পারে, সেটা কিন্তু ডিরেক্টলি এফেক্ট কাকে করছে, ইন্ডাস্ট্রিকে, বিকজ ইটস আ ফ্রাজাইল বাই নেচার, রাইট? বাট তারপর কি লিখবে, তারপর জিনিসটা লিখবে যে ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম যেহেতু একটা থার্ড লার্জেস্ট ইন্ডাস্ট্রি, এর একটা খুব ভালো ইম্প্যাক্ট আছে ইন অল রেসপেক্ট, লাইক সোশ্যালি, কালচারালি, ইকোনমিক্যালি, মেনলি পলিটিক্যালি একটা নেশনের উপরে, তো অটোমেটিক্যালি এটাকে ঠিক করার জন্য সকলেরই একটা কি থাকে, একটা মানে গভর্নমেন্টের থেকে একটা ইনিশিয়েটিভ থাকে হাউ টু রিকভার। দেন দোজ আর দ্য ফ্যাক্টরস during after pandemic, those are the factors which help us to promote tourism in a long term basis. And end এ কি লিখবে, একটা কেসলেট, কেসলেটটা হচ্ছে এক্সাম্পলের থেকে বড় আবার কেস স্টাডির থেকে ছোট, যেটাকে বলা হয় কেসলেট। ধরো তুমি যে এই যে বললে না যে তুমি একটা পুরুলিয়া, এই পুরুলিয়াটাকে তুমি লাস্টে দাও লাইক কেসলেট, যতগুলো পয়েন্ট মেনশন করেছো সেই পয়েন্টগুলোর সাথে রিলেট করে ওটাকে একটা ছোট্ট করে একটা ভালো মোটামুটি একটা মিডিয়াম সাইজের প্যারাগ্রাফ বানিয়ে একটা কেসলেট করে তোমার আনসার শেষ করবে। কংক্রিট হলো, এক্সাম্পলস থাকলো, বেসিক থাকলো, একদম তোমাকে যে কোয়েশ্চেন করেছে সেই রিলেটেড ইনফরমেশন থাকলো, অ্যালং উইথ এক্সাম্পল অর কেসলেট যেটাই বলো, কংক্রিট হলো আনসারটা। এরকম ভাবে লিখতে হবে, না হলে কিন্তু পাস করাটা খুব ডিফিকাল্ট। বুঝতে পেরেছো? রাজস্বী বলো তখন কি বলছিল। বলছিলাম আপনি যে ফ্যাক্টরস গুলো বুঝিয়েছিলেন না ক্লাসে, যেরকম গ্রুপ সাইজটা ছোট হলেই ভালো হয়, কেন কি প্যান্ডেমিকে তো যত বেশি বেশি লোক থাকবে তত খারাপ, তাই গ্রুপ সাইজটা অল্প হলেই ভালো, সেটা ইকো ফ্রেন্ডলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্টি কোভিড। এবং নাম্বার 2 হচ্ছে যে পলিসিস অফ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য ইন্টারন্যাশনাল ভিসা নেওয়ার সময় সেগুলো পলিসিস এবং যে গাইডলাইন্স গুলো সেগুলো ভালো করে মেনটেন করতে হবে। হ্যাঁ, নাম্বার 3 হচ্ছে যে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে যে আমরা যখন একটা ট্রাভেল করব একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায়, তখন সেটা ন্যাশনাল হোক, রিজনাল হোক, ন্যাশনাল হোক বা ইন্টারন্যাশনাল হোক, আমাদের ইকো ফ্রেন্ডলিটা মেনটেন করতে হবে। মানে ইকোনমিক্যালি সাউন্ড থাকতে হবে এবং ইকো ফ্রেন্ডলি ট্রাভেল করতে হবে, যাতে সাস্টেনেবল ট্যুরিজমটা প্রোটেক্টেড হয়। এরকম অনেক আরো দেওয়া যেতে পারে। এই বক্তব্য ছিল। তো এরকম ভাবে একটা লিখবে, ঠিক আছে? আচ্ছা তোমাদের যেটা আরেকটা জিনিস করবে, নেক্সট উইক তো আমাদের TS4 এর লাস্ট ক্লাস, আমি এরকম জেনারেল আরেকটা পয়েন্ট বলে দেবো, জাস্ট এ সেকেন্ড।
হ্যালো, অফিস থেকে ফোন। বলো, আর কিছু তোমাদের জিজ্ঞাসা করার আছে? So by the way, behalf of my side, happy Teachers Day to you all. তো তোমাদের মনে হবে ম্যাম কেন আমাদের উইশ করছে, কারণ আমার মনে হয় যে আমি যখন পড়াচ্ছি তো আমিও স্টুডেন্ট, তো তোমাদের থেকেও আমি অনেক কিছু শিখি। তো ইউ অল আর টিচার ফ্রম থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। টিচার ইন ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল। তো হ্যাপি টিচার্স ডে টু অল অফ ইউ। তো টেক রেস্ট, বি সেফ, ওকে, বাই বাই। আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে নেক্সট উইক PS4 এর লাস্ট ক্লাস হবে। সো ইফ পসিবল জট ডাউন ইয়োর প্রবলেম এরিয়া or any topic which you actually wants to discuss, ওটা করে রাখবে ইন্ডিভিজুয়ালি। তাহলে আমি যখন আফটার মাই ডিসকাশন পার্টিসিপেট করবো দেন তখন ক্যামেরাটা নিয়ে একটা ডিসকাশন কন্টিনিউ আমি যেমন আজকে করেছি তেমন আমরা করবো নেক্সট ক্লাসে। দ্যাট মাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ম্যাম একটা কোশ্চেন করছি। বলো। হ্যাঁ বলো। ম্যাম মানে বলছি আপনি যে কোশ্চেনটা আমাদেরকে করলেন এখন, যে মানে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে, তো আপনি তো একটা মানে পিপিটিতে দিয়েছিলেন যে মানে 20টা মতো পয়েন্ট ছিল যে এই বিষয়গুলো মানে মাথায় রাখতে হবে। তো আমি যদি ওই বিষয়গুলোকেই মানে প্রথমে লিখে সেই সম্বন্ধে কিছুটা এক্সপ্লেন করে দিলাম, মানে যে কিভাবে আমরা সেই যেমন সোশ্যাল বুঝতে ডিস্টেন্স। পারলাম না, আরেকবার একটু বলো প্লিজ। আপনি তো বলো, তোমার ভয়েসটা কেটে যাচ্ছে রিম্পা, আরেকবার একটু বলো। বলছি আপনি সে 20টা পয়েন্ট দিয়েছিলেন না যে পোস্ট কোভিড আমরা বাইরে গেলে মানে কি কি জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। তো আপনি এখন একটু আগে যে কোয়েশ্চেনটা করলেন আমাদের, তো সেই ক্ষেত্রে তো ওগুলো মানে দরকার পড়তে পারে। তো যদি সেগুলো মানে লেখার পরে এক্সপ্লেন করে দিলাম একটু, যেমন ধরুন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এই ব্যাপারটা তো একটু যতটা সম্ভব মেনে চলতে হবে, সেই বিষয়ে কিছুটা লিখে মানে পয়েন্টগুলোকে করে করে যদি করি, যে তারপরে আপনি লাস্টে যেভাবে বললেন যে একটা কেসলেট ছোট দিয়ে করতে, এইভাবে করলে হবে। হ্যাঁ, আনসারটা সাজানোরটা বলছি। তুমি আনসারটা লিখে পসিবল আমাকে একটা মেইলও করে দিতে পারো, আমি তোমাকে চেক করে বলবো। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে। থ্যাংক আর ইউ কারো ম্যাম। কিছু বলার আছে? সুস্মিতা, মোস্ট ওয়েলকাম। সুস্মিতা, জুহি। একটা প্রশ্ন ছিল, আপনাকে আবার বিরক্ত করছি। সেটা হচ্ছে যে am I allowed to fill the second year form, because আমি মার্চ মাসে ফার্স্ট ইয়ারের জুনের ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম, তাহলে তিনটে পেপার, এইটা মিস করে গেছি, এই পয়েন্টটা এটা মিস করে গেছি। ঠিক আছে, লাস্ট দিনে। ওকে ফাইন, নেক্সট ডে ক্লাসে জিজ্ঞেস করে নেব। হ্যাঁ তাই, ঠিক আছে। নেক্সট ডে ক্লাসে জিজ্ঞেস করে নেব। আমি জানি না, কনফিউজ। ক্লাসেস হবে। হ্যাঁ এখন হবে, আর একটা লাস্ট ক্লাসেস হবে। একটা TS4 হবে, TS5 এরও আরো দুটো ক্লাস হবে। ও থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওয়ান্ডারফুল, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে হবে, এখন ক্লাসেস চলবে, 19th অবধি ক্লাসেস আছে। আচ্ছা। যা যা কোশ্চেন থাকবে এগুলো জট ডাউন করে রাখবে। হ্যাঁ, ওটাই ভুলে গেছিলাম। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোয়ারিজ গুলো আমরা ঠিক ডিল করতে পারি না। I got your point. Exactly. ঠিক আছে, চলো, টেক কেয়ার, বাবা, Have a wonderful day. Have a wonderful day. থ্যাংক ইউ। Stay safe, ma'am.